میرا ایسا میں دفاع کرتا ہوں، میں دفاع کرتا ہوں نہیں سر، میں ابھی بیٹھ کے ادھر دفاع کروں گا. اور سر دوائی کے آپ طور سے تو پر دفاع ہو نہیں رہا. مرزا قادیانی شرابی کا، اور کھائی بھی جاتی مرزا قادیانی شرابی کا آپ سے دفاع نہیں ہو رہا. ابھی کرتا ہوں، آپ بولنے دیں گے. لائے حوالہ دیں مجھے پہلے تو میں وہ ادھر نہیں. میں نے ابھی آپ نے جو ایک بہتان لگایا ہے صحابہ کے اوپر، پہلے اس پہ بات. سر اس زمانے کی دوائی حکیم لگاتے ہوتے تھے. میں نے نہیں حوالہ دے. یہ تو کوئی حکیم آگے بتائے. حوالہ نہیں، آپ نے بات کیوں کی؟ حوالہ دے. یا آپ اس کی معافی مانگیں گے، کیوں نہ کروں اللہ اعلان، یا تو معافی مانگیں گے کہ میں نے ظلم اور زیادتی کی اور یہ کفر کیا، میں نے صحابہ کے لیے میں نے فیلم کو جائز قرار دیا ہے. نہیں نہیں نہیں، میں نے ادھر نہیں اب جانا. پہلے وہ بات ہوگی، اگلی بات وہ ایک شرابی انسان کو بچانے کے لیے آپ نے سچے صحابی جو تھے حضور کے، سر میں تو پین کلر دوائی کی بات کر رہا ہوں، جو محفوظ عن الخطا ہے، جو محفوظ عن الخطا ہے، ان پر آپ نے بہتان لگا دیے. سر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مرزا شرابی کو بچانے کے لیے آپ نے دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو شراب کے بارے میں نا کچھ نہیں پتا. مرزا شرابی کو بچانے کے لیے آپ نے صحابہ کے اوپر شرابی ان کو کہہ رہے ہیں نا، اس کی معافی مانگیں گے. میں آگے بات نہیں کرنی نہ ہوئے آگے بات نہیں ہے تو پھر نہ سے نہیں ایسے نہیں، آگے نہیں ہو، آگے نہیں ہو. یا حوالہ دیں گے آپ، یا معافی مانگیں گے، معذرت کریں گے، پھر بات. نہیں میں کیوں معذرت کروں؟ مجھے پتا ہے کہ یہ دوائی کے طور پر استعمال ہوتی ہے صدیوں سے. ادھر اعلان کریں گے، آپ اعلان کریں گے، اس کو معافی کہتے مانگیں ہیں نمنگ گے، ایجنٹ. آگے بات پھر ہوگی. نہیں تو آج کی نشست میں کم از کم واٹر صاحب آج کی نشست میں کم از کم میں نے مرزا قادیانی کو 2 حوالوں کے ذریعے شرابی ثابت کر دی ہے، اور اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لوگوں کے سامنے ریکارڈنگ جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ قادیانی مربیوں کے پاس، قادیانی علماء کے پاس، قادیانی لوگوں کے پاس مرزا کی شراب کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ تو دوائی ہے. اور یہ بہتان لگاتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں صحابہ کے اوپر. قوم کو سب پتہ چل جائے. بالکل نہیں سر، ہم صحابہ پہ کیوں الزام لگائیں گے؟ آگے میں نے کوئی بات ہی نہیں کرنی. وہ تو تیر نکالنے کے لیے دوائی لگائی جاتی ہے. اس کی معافی مانگیں گے آپ، آگے نہیں نہیں سر، میں کیوں معافی مانگوں؟ تیر نکالنا آسان ہوتا ہے، آگے بات نہیں ہوگی. واٹر صاحب آگے بات ہوگی نہیں. جس کے جسم میں سے تیر نکالنا ہوتا تھا دوائی لگتی تھی، جیسے سون ہو جاتا تھا. بابر بھائی آپ کر لیں یا کوئی اور کر لے. چلو ٹھیک ہے بھائی، چلیں. میں نے اس سے آگے نہیں چل سکتا. آپ نے جو ریڈ لائن ہے نا وہ کراس کر دی ہے. آپ شادمیت پہ آ گئی. ریڈ لائن اگر کراس نہ کرتے تو میں آپ سے بات کرتا. آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی. تیر نکالنے کے لیے دوائی لگائی. نہیں بھائی، میں نے بات نہیں کرنی، میں مائک میوٹ کر دی. واٹر صاحب آپ نے شادمیت کی ہے، اس سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. سر میں نے شادمیت نہیں کی، تیر نکالے جاتے تھے. ندیم بھائی ایک سیکنڈ. جی السلام علیکم. جی واٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ شاید آپ اگر ہسٹری کو پڑھیں گے تھوڑا سا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج سے 300 سال پیچھے جو ہے یہ جو ادویات بنتی تھی یہ جڑی بوٹیوں کی بنتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس وقت انگلش میڈیسنز اتنی استعمال نہیں ہوتی تھی. شراب قطعاً حرام ہے، دوائی میں بھی ہو پھر بھی حرام ہے. اسی لیے قرآن پاک میں جو ذکر آیا ہے حکیم لقمان کا آیا ہے، اور وہ جڑی بوٹیوں کا کام کرتے تھے. اور عرصہ دراز تک جو ہے یہ آج بھی حکمت کا کام ہوتا ہے. مسلمانوں کو حکم ہی صرف اور صرف یہ جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی دوائیوں کو استعمال کرنے کا ہے. اس وقت بھی جس وقت کا آپ ذکر کر رہے ہیں کوئی ایسی نشہ آور دوائی نہیں ہوتی تھی جن کو تیر نکالنے کے لیے یا زخموں کو سینے کے لیے استعمال کیا جاتا. وہاں پر بھی جڑی بوٹیوں کو کا ہی استعمال کیا جاتا تھا. سر افیم جڑی بوٹی سے تو آتی ہے. نہیں افیم دیکھیں، افیم میں دوسرے میڈیسنز پڑتے ہیں، دوسرے قسم کے کیمیکل پڑتے ہیں، تب جا کر وہ نشہ آور بنتی ہے. سر 5000 سال پرانی جڑی بوٹی ہے افیم. میں مانتا ہوں، سن لینا میری بات سن لیجئے سر. افیم نشہ آور اس وقت بنتی ہے جب اس میں کیمیکل پڑتے ہیں. اگر پیورلی جیسے کہ جو پوست کا پودا جو ہے، پوست کے پودے سے جو وائٹ مادہ نکالا جاتا ہے، جب تک اس میں دوسرے کیمیکل نہیں پڑتے اس وقت تک وہ ہیروئن نہیں بنتی. سر تو سر یہی تو مولانا صاحب کو غلطی لگی ہے. میں نے کھانے کے لیے افیم نہیں کہی، میں نے کہا ہے کہ اس جگہ پہ پانی میں حل کر کے لگائی جاتی تھی اوپر سے، تاکہ وہ جگہ سون ہو جائے.
मैंने खाने वाली थोड़ी का ये कहा। आप अफ्यून के पौधे से आप निकालें, उसको पेवरली इस्तेमाल करें विदाउट किसी केमिकल को यूज किए हुए, ठीक है। आप उससे नशा निकाल कर मुझे दिखा दे, मैं और आप सर, जो मैं जुर्माना खुद कहेंगे डोडा पी मैं लेता दूंगा। हूँ सर। और सर जी मैं आप पी लेता हूँ डोडा, आप क्या बात कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं? ऐसी कुकी चढ़ती है कि आपको पता ना लगे दुनिया में है कि आसमान पे है, कैसी बात कर रहे हैं? यार डोडा पीना और चीज है सर। तो डोडा को आप अफीम कहाँ बॉयल से निकलती करेंगे, है? बॉयल डोडे के करेंगे, ऊपर कट लगा के उसमें अफीम निकलती है। और सर जी उसमें आप केमिकल मिक्स करेंगे तब वो नशावर और होगी। जाने दे सर, कोई खान भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको पूछे मैं खुद पठान हूँ यार। हाँ जी, तो अफीम सीधी आप मतलब कि तीले से लगा के असल अफीम डालें गिलास में, तो क्यों नहीं नशा चढ़ता? नहीं और नशा चढ़ता, सिगरेट के साथ- एक यार, उतनी क्या बराबर, एक तीले बराबर नहीं चढ़ेगा नशा। थोड़ी ज्यादा ले मैं लेंगे। बेट करता हूँ। ये आप अपनी अपने पे होती है ना, आप ज्यादा लेते होंगे इसलिए आपको ज्यादा पे चढ़ता होएगा। और जिंदाबाद, आप मेरे पे आ गए आप। हाँ, तो मैं मैं बैठा वो जिस कंट्री में यहाँ पे अफीम का नामो निशान नहीं है यार। और यार किस कंट्री में अफीम का नामो निशान नहीं है? सारी दुनिया में अफीम मिलती है। और नहीं मिलती हो खुदा के बंदे, हर और जगह पे सिख- नहीं मिलती सिख यार। बंदे हर सारी जगह पे। दुनिया में मिलते हैं ना। जिस दुनिया में सिख होए ना, वहां पे अफीम और आलू जरूर मिलता है। आलू मिलेगा, अफीम नहीं मिलेगी। और सर जी क्यों नहीं मिलेगी? सिख तो रोज पी के सोते हैं अफीम, अल्लाह भाई। तभी तो आपसे ज्यादा मेहनती होते हैं। हाँ ना, तो आप भी पीते हैं फिर ना, इसका मतलब इसीलिए मेहनत ज्यादा करते हैं। तो इससे बेहतर आप सिख हो जाते। सर बस इन्होंने ऐसी बातें हैं सर साहब की सुन्नत भी तो पूरी करनी है ना। शराब पी नहीं, के मेरे सर भाई, सुन्नत ऐसी तो पूरी बात करनी है कि नहीं? क्यों वाटर साहब? पाकिस्तान के सारे प्यारे भाई सारे नहीं, नहीं। विटामिन के शरबतों में शराब डलती है, सब आपके विटामिन के जम- शरबतों में शराब और डलती है। जनाब आपकी जमात के पानी जो है वो कभी कभी पी लिया करते थे शराब, तो आप तो लाजमी पिया करेंगे ना। सर देखिए मेरी बात सुने, टॉनिक वाइन आज भी पाकिस्तान में बी कॉम्प्लेक्स के सिरप मिलते हैं। अब भाई टॉनिक वाइन जो मिर्जा साहब पीते हैं, जो जिसका हवाला किताब के अंदर मौजूद है, इधर यूरोप के अंदर उसके अंदर 33% शराब होती है, जो वो आप मिर्जा साहब पीते थे शराब। एक चमची पी ली तो क्या हो गया? हमारे भी सारे विटामिन के सिरपों में 33% शराब ही डली होती है। जिस इस्लाम की बात कर रहे हैं उस इस्लाम में एक कतरा पीना भी हराम है, तो आप तो सर ये आपका कोई फतवा है ना, बोतल पी जाते हमारे हैं। पास भी फतवा है, पाकिस्तान में हमारे नहीं, पास कौन सा? फतवा होता है फार्मास्यूटिकल नहीं कौन कंपनियों के सा? पास। नहीं, फिर आप दीन इस्लाम की बात ना किया करें। आप जो आपका इस्लाम जो हो रहा है, जो मिर्जा कादियानी ने बोला है, टीके वो भी तो शराब में हमारा बनते हैं, इस्लाम हो रहा है, टीके भी उनका तो वही इस्लाम हो बनते हैं रहा है। शराब में। टीकों में भी शराब डलती है, पाकिस्तान में भी डलती है। नहीं तो आप तो ये आपके इल्जाम लगा रहे हैं। क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मैं तो खुद दवाइयां बनाने की फील्ड में हूँ। पता नहीं कौन सी मिर्जा साहब को तो आप मशवरा नहीं देते रहे तुम लोग। और दूसरी उनको बात, कहाँ एक बात रजा ना- मिर्जा शराब पीते थे। सुनो मेरी बात, एज ए मेडिसिन पीते रहे हैं या एज ए वैसे पीते रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं एक कतरे एक घूंट पी एज अ लेते हैं। मेडिसिन ही पी रहे हैं ना, इस तो खत क्या के उनको क्या मुताबिक बीमारी डॉक्टर को है? खत लिख रहे वो हैं। तो शौक मुफ्ती से साहब पीते रहे हैं। मुफ्ती साहब मुझे एक मिनट दे, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं एक बात छोटी सी कहना चाहूंगा कि मिर्जा साहब को कोई भी कभी किसी बंदे ने नहीं कहा कि वो शराब पिया करते थे, क्योंकि शराबी कभी वो नहीं अकेला नहीं, शराब उन्होंने पीता। वो यार उनकी किताब के अंदर लिखा है, वो तो और शराब पी के औरत बन जाते थे। कहते थे जो मैं औरत शराबी बन होता है ना, जो शराबी होता है वो अकेला शराब नहीं पीता। नहीं भाई साहब देखिए, ये उधर तो आप जाकर ना कभी खातमुन नबीयीन के उसके पीछे वो चुप जाते हैं कि भाई इसके माना ये है अब देखो आप शराब को भी हलाल समझते हैं। इसके ऊपर देखो यहाँ पे लोगों ने कहा था कि इसके अच्छा सा कोलेस्ट्रॉल तो ज्यादा करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। खाना खा रहा हूं मैं। कह रहे हैं कि कहाँ पे लिखा है? अखबार का नाम है पिगामे सुलह। नोट करें जी वाटर साहब। और 4 मार्च 1935 का शुमारा है, सफा नंबर 3 है। बड़ा सा लिखा हुआ है, टॉनिक वाइन का किस्सा, जिमीदार के बेहकीकत इतराज का जवाब, आज जनाब डॉक्टर बिशारत अहमद साहिब। ये पूरा मजमून है। उसके अंदर डॉक्टर साहब ने साबित किया है कि वाकई ये शराब ही थी, लेकिन मिर्जा साहब इस शराब को दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते थे। जाके पढ़ लें, बकाया बात कर लें। जी मुफ्ती साहब, ये एक यहाँ पे अमेरिका में कुछ बहस हो रही थी कि ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा करते हैं,
तो एक दफ़ा हमने गार्ड वाले से पूछा कि भाई ये आप लोग रिकमेंड क्यों नहीं करते, तो उसने कहा कि देखो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको कोई भी मतलब है कि रिकमेंड नहीं कर सकता। कि आप देखिए यहाँ पे अमेरिका में 55% ऑफ एक्सीडेंट जो है मोटर व्हीकल या अल्कोहल की वजह से होती है। द नंबर 1 कॉज ऑफ लिवर फेलियर यहाँ पे डिमेंशिया, इसकी इतने नुकसान आते हैं। और ये आज अभी भाई साहब आकर ना मिर्जा साहब ने पिया है, तो अब ये भी जायज़ कर लो कि भाई दवा आज तक कोई बंदा साबित नहीं कर सकता कि नशे की चीज़ में या अल्कोहल में कोई शिफा है। इसके नुकसानात बेतहाशा, ये नो क्वेश्चन अबाउट दिस थिंग। अब भाई साहब आकर अब यहाँ पे कहते हैं कि मिर्जा साहब ने दवाई पी है। अजीब बात करते हो यार। अब ये नबी तो आपके लिए वो नमूना होता है यार। आप उसको आप उस और उसको फिर आप जाकर आप हर चीज़ हलाल कर लेकर, हम जिना कोई करेगा तो चलो चले वो वाइफ नहीं मिलती है तो बस शादी करने का वो नहीं है, जिना भी कर ले, आसान बात है भाई। यू कैन मेक सम थिंग यार। गलत बात कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि ये जिंदगी का एक वक्ती फेज है जिसमें उन्होंने एक दवाई ली आप है। साबित करें, आप साबित करें कि इसमें, देखो आप साबित करें मुझे किसी साइंटिफिक अभी कोट कर ले कि इसमें शिफा है, मुझे बता दें। अभी कहाँ से कह रहे दवाई यार? वो 2% को भी दवाई में डालकर नहीं आप बंद करके पाकिस्तान का कोई भी मल्टीविटामिन सिरप ले लें यार। बंद करके छोड़ यार पाकिस्तान को यार। ये बात मेरा आंसर नहीं, मैं कहता हूँ कि साबित करो। आप जब बात करनी है कोई हवाला दे दे। साहब मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। साहब मैं आपको वाकया बताता हूँ। एक काफी 10 साल पुरानी बात है। 10 साल पुरानी वाटर साहब, 10 साल पुरानी बात। हेलो नदीम भाई 1 मिनट वेट करो, शायद गल करना पुरानी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है यार। आवाज नहीं आ रही मेरी? देखिए आप उसके बर्थडे जी आ रही है शाह जी। 1 मिनट न्यूयॉर्क भाई 1 मिनट आ रही है शायद। मैं बड़ी देर दा बोल रहा वहां ते पता नहीं आवाज नहीं आ रही। नदीम साहब जरा खामोश हो जाओ। आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। खामोश हो जाओ, म्यूट करने साहब जरा। सबको आ रही। नया रसाला आ रहा है मेरा, मिर्जा कादियानी दुयूस। उसके अंदर एक हवाला मैंने लगाया है, वो उससे आपको और बड़ी चीजें पता चल जाएंगी। वो जो हवाला था सीरतुल मेहदी हिस्सा अव्वल सफा 56 के ऊपर के मिर्जा कादियानी अपनी बेगम नुसरत जहां बेगम को गैर मर्दों के साथ वो भेजता था और वो खुश था कि मेरी बेगम गैर मर्दों में खुश रहती है, जो मर्जी करे। मेरी बेगम ते मेरी बेगम दा जिस्म ते ओदी मर्जी है। इसी वाकया को बयान किया है खुतबाते महमूद 1950 सफा 86 और 87 के। वो भाग गया, चलेगी भाग गया। चले मैं अपनी ये बात करके, तो मैं वैसे भी खाना खा रहा हूं। कहते हैं हजरत मसीह मऊद की आमद से पहले पर्दा और किस्म का होता था और आपकी बेसत के बाद पर्दा और किस्म का हो गया है। आगे उसने वो फिर वाकया ये वाला लिखा है, स्टेशन वाला। मतलब इन लोगों की शरीयत लग गए, दीन लग गए, शरीयत लग गए, मजहब लग गए, मसले लग गए, जिसके अंदर शराब भी हलाल है, औरत अपनी औरत को किसी और के हम बिस्तर करना वो भी हलाल है, ज़िनाकारी हलाल है। तो ये सारी जो हराम की हुई थी शरीयत ने, शरीयत इस्लामिया ने, वो इनके दीन और बनावटी और जैली इस्लाम के अंदर ये चीजें सारी हलाल। बस ये मैंने साबित करना। करें बात, मैं तेरा खाना खा। जी जिहाद भी उस वक्त मेरा ख्याल उसने मना किया था। देखिए जी ये यही हमारे लोग गलती करते हैं। इनको कुरान पे इन लोगों को, अब देखो इनकी हालत देखें, ये कुरान की आयत ही वहां जाकर बात करते, इसको तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं करना चाहिए उन पे। इनको सिर्फ जो ना मिर्जा साहब पे उनकी लाइफ पे बात करें। देखिए ये सिर्फ उनकी, मैं उनसे पूछता हूँ उसके बर्थडे, ये कहते हैं कि उसका तारीख पैदाइश जो है ना वो 35 था, 1835। और ये मिर्जा साहब ने कई जगह भी लिखा हुआ है कि उससे अगर आप हिसाब किताब लगाए तो तकरीबन वो 1839-40 में आता है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये इनके वालिद साहब थे, वो पेशावर में मुकीम थे और वो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में, और वहाँ पे वो लड़ रहे थे, और 1838 से 1842 तक वो वहाँ पे थे, और कोई सबूत नहीं है कि वो वहाँ पे गर गए हैं। तो फिर इससे बचने के लिए
बहुत सारे हैं ये, वो मैं बता दूंगा, उसने मैंने नोट कॉपी किए थे, लेकिन मैं अच्छा नहीं नहीं, नहीं और मैं भी बताऊंगा बहुत सारे आपको। अच्छा उसकी अब मेरे बात सुनिए थोड़ा सा। एक मिनट रुक जाए ओ जी। भाई जी, रुक जाओ भाई, एक से का मैं ये हवाला तलाश कर रहा हूँ। ये अच्छा मैं ये हवाला मुझे चाहिए, मैं तो ये वो सैयद साहब है, सैयद साहब उसने इतने कोट किए थे, एक एक पेज बताया था। हवाला मुझे नहीं मिला आज तक। मैंने शायद कि मेरे पास हो, मैं आपको। अच्छा दूसरी बात, मैं सिर्फ आप नहीं मेरे नहीं, सिर्फ बात दूसरी नहीं, ये हवाला मेहरबानी अगर है तो मुझे दे मुफ्ती दे, साहब मुझे चाहिए। थोड़ा सा एक मिनट, मुझे वो गलत बात तो नहीं कि भाई जो बाद में हमारे लिए भी दिक्कत हो, बात जो भी करें आप, लेकिन हवाले के साथ, बगैर हवाले के कर कोई भी पूछ सकता है, 1840 जैसे आता मैंने है। पूछ लिया, अच्छा कोई भी अच्छा पूछ नहीं सकता है। तो ये मुफ्ती बात साहब कहाँ से लिखी है? उन्होंने ये कहते हैं, मुफ्ती साहब दूसरी बात सुन ले, ये कहते हैं 1835 मिर्जा साहब के अपने अल्फाज है, उनसे किसी ने पूछा कि आप 1857 की जंग में अंग्रेजों के खिलाफ क्यों शरीक नहीं हुए, तो उसने उसमें कहा कि मैं इतना यंग था कि मेरा जो मुस्टाश का खत नहीं ये भी नहीं आया था। तो आप अंदाजा लगा ले, इनके मुताबिक अगर 1835 में पैदा हुए थे तो 5 और 10 15 और 7 ये 22 साल की उम्र में मिर्जा साहब फिर भी बालिग नहीं हुए थे। इन्हीं ऊपर झूठ निकलता है कि इसने झूठ बोला था। तो इसलिए ये सिर्फ आप सिर्फ इनकी बर्थडे पे आप पकड़ ली, बात खत्म हो जाएगी पूरी। ये इतना झूठ है सब कुछ। और दूसरी बात है कि अगर 1840 में थे तो ये उनके बेटे जो ना 1852 में जो है ना वो सुल्तान बेग साहब पैदा हुए थे। तो ये 12 साल की उम्र में आपकी औलाद किस तरह। अच्छा उसके बाद उनके आखिर में इनकी डायबिटीज और इतनी ज्यादा बीमारियां, इसकी बच्चे कैसे मेडिकली आप जरा देखें तो सब कुछ अगर आप इस पर तहकीक कर लें तो सब कुछ खुराफात है। देखिए भाई, अजय मोहतरम जो भी हवाला करते हैं ना, बात करते हैं, उसका हवाला पहले लगाते हैं। और ये सैयद इनकी मौजूदगी में जी उसने एक किताब के मेरे जी मैं तो यही कहता हूँ ना कि ये चीज निकाल के ना इसको पब्लिश कर ले, और ये चीज इनकी यंग जनरेशन से अगर ये कोई पढ़ेगा तो कोई बार इसको फॉलो नहीं करेगा। ये उधर जाकर ना हम लोग बात ठीक है जनाब आपकी, उनका जिंदगी का रिकॉर्ड है एक बात। जी ये वो सैयद साहब है ना, उसने उस पर काफी रिसर्च किया, उनके पास पूरे जो ना उसकी सबूत है हर किताब का। कोई गल का कौन से समझ नहीं जाई वैसे ये ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਂਡੀ ਸਮਝ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪਈ ਐ ਪਈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਇੰਝ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਵੇ ਭਾਜੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਆਗੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਹਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। क्योंकि वो बजाते खुद तो पूछ रहे हैं कि भाईजान हवाला लगाएं, हवाला बताएं हमें, हमारे पास नहीं है, तो आप बात ही ना फिर करें। ये चीजें होती हैं, फिर इस तरह दूसरे की किरदार कशी होती है। उसाफ बैठा है इधर, उसाफ बेटा, उसाफ मोईद इत्थे ही है, सो गया। मोईद है वे। हाँ जी मैं इत्थे ही शाह जी। देख लिया जे अज ही हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੂੰਹ ਚ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਜੇਬ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚ ਕੱਢਣੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ? हाँ जी। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਵੋ ਮਜਲਸ ਲਾ ਕੇ ਬਵੋ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਸਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਰਸਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਛਪੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਓ ਬਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਛਪਾਉਂਦੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਾਨੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਦੋਮੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਗਾਂਡੂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਗਾਂਡੂ ਵੀ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਰਾਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਹਰਾਮੀ ਸਾਜੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਠਰਕੀ,
ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ PDF ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਛਪਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕੁਛ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ WhatsApp ਹੈ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਜੇ? WhatsApp ਹੈ ਜੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ SAID ਦੀ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਮੁਸੰਨਿਫ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਕੀ ਖਿਆਲ? ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी मोहित भाई। जी आज देखा जो फिर बरात चली है ना, फिर हाँ जी हाँ जी। वो कह रहे हैं मतलब अला इखलाक है, एक मुकम्मल खूबसूरत है, वो मोहम्मद है और ये मेरा दोस्त है हबीबी, हुआ हबीबी व हुआ सदीक़ी या बिन्त यरूशलेम। मैं अरबी में भी पढ़ रहा हूँ थोड़ा, तो देखो। अच्छा, एक लफ्ज़ मुस्लिम, ये क्रिश्चियन कहते हैं मुस्लिम का लफ्ज़ बाइबल में नहीं, ये भी दिखाता हूँ। ये है इज़ाया 42:19, इसमें पढ़ो, ये बिल्कुल मोहम्मद सल्लम की निशानी है, इसमें बिल्कुल वाज़ेह। ये लोग मानते नहीं है, कोई बात नहीं, हमें क्या, जहन्नुम में जाए। अच्छा जी, इसमें लफ्ज़ मुस्लिम मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इज़ाया 42:19, ये है 42:19 में इसको हिब्रू में खोलता हूँ क्योंकि ट्रांसलेशन में ये डंडी मारते हैं। अतः ये देखो, मी एवख की मी अबदी, ये देखो हम अरबिक में कहते हैं अब्दू ना, सर्वेंट, इब्रानी में है अबदी, अबदी। अच्छा, ये किम लखी इला मी एवख किम शलाम, ये लफ्ज़ देख रहे हो, किम शलाम, ये असल में मुस्लिम, बट ये जब प्लूरल हो जाता है, प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट किम शलाम, लेकिन मैं इस लफ्ज़ को खोलता हूँ, इस लफ्ज़ का रूट वर्ड क्या है, इसको मैंने खोला, ये किधर चला गया, एक मिनट। अच्छा जी, ये है, ओए होए होए, इतना बड़ा हो गया। अच्छा, ये मैंने, ये किधर चला गया, नहीं यही है, सही है। अच्छा, मैंने इसका रूट वर्ड खोला, ये है शलाम, सलामा। अच्छा, ये इस लफ्ज़ की पूरी डिक्शनरी है, लेकिन इसमें ये जिस शख्स ने, ब्राउन डिगर जिसका नाम है, डिक्शनरी इसने लिखी है, बी कंप्लीट साउंड हिब्रू phenomenon, complete requirement, especially in proper name. Be safe, secure, free from fault. It's make or reason, submission oneself. देख रहे हो, submit oneself, especially to God, wins a participle of Muslim. Ineffective, proper submission to God. Assyrian salamu be complete. तो असल में जो ये लफ्ज़ है, ये असल में किम मुस्लिम है, क्योंकि लेकिन ये जो हिब्रानी, ये मुस्लिम को मुशलैम बोलते हैं, किम शलैम, मुस्लिम। बस ये दिखाना था। और ये अबदी जो है, ये हमारे नबी की पूरे एक निशानी है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में एक नबी आएगा, उसके बारे में बाकायदा निशानी है। ये लोग कहते हैं मोहम्मद सल्लम एक जंगजू है ना, ऐसा ही कहते हैं। ओके, अगर आप ये पढ़े ना, ये जो नबी आएंगे, ये अभी देखो, ये जो नबी आएंगे, ये एक जंगजू होंगे, और अरेबिया में आएंगे। ये देखो, ये Here is my servant whom I uphold, my chosen one. chosen को अरबिक में मुस्तफ़ा कहते हैं। Whom I delight, I will put my spirit on him and I will bring justice to the nations. ये justice लाएगा कौमों में। He will not shout or cry out, or raise his voice in the streets. He breast need will not break, उसको कोई तोड़ ना सकेगा। ये जो शख्स आएगा उसको कोई तोड़ ना सकेगा। And smoldering weak he will not snap out. In the faithfulness he will bring forth justice. वो जब तक वो कानून नहीं लाएगा ना, उसको कोई तोड़ नहीं सकेगा, शरीयत नाफिज करेगा वो। He will not filter or be discouraged. उसको कोई मतलब ऐसे गलत नहीं कर सकता, ना उसको उस अपनी मिशन से हटा सकेगा। Till he established justice on earth. He is teaching Iceland for their hope. तो इसकी जो शरीयत होगी वो आइसलैंड पे होगी। आप देख रहे हो जजीरे जहाँ है,
زیادہ تر وہاں مسلمان آباد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں اسلام آپ دیکھو زیادہ تر جزیروں پر مسلمان آباد ہیں. This is what the Lord said, the creator of the heavens, who stretched them out, who spread out the earth, will all spring from it, who gives bread to the people. اب یہ دیکھنا یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگجو ہیں. بے شک اس نشانی کے مطابق نبی کو جنگجو ہونا چاہیے. I will take hold of your hand. میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا. I will keep you in all. I will make you to be a covenant for the people. ابھی اس میں ایک چیز ہے دیکھو، یہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے علاوہ کسی میں نبی نہیں آ سکتا، ایسا ہی ہے نا. لیکن ٹو بی covenant فار دا پیپل اینڈ لائٹ فار دا جینٹائلس، یہ جینٹائلس یہ غیر یہودی ہیں. یہ جو نبی آئے گا نا، یہ جو شخص یہ آئے گا غیر یہودیوں میں، جینٹائلز میں. تو جینٹائلز تو ہم لوگ ہیں، غیر یہودی ہیں، عرب ہے. ٹو اوپنس آئیز دے آر بلائنڈس، جو اندھے ہیں، مطلب جو لوگ بت پرستی کا شکار ہے. فار کیپٹیوز فرام پریزن اینڈ ریلیز دیم فرام ڈیگن دوز ہو سٹ ان دا ڈارکنیس. اب یہ دیکھو آئی ایم دا لارڈ. اب اس میں نشانی دے رہے کہ یہ نبی کہاں کا آئے گا. آئی ایم دا لارڈ دیٹ از مائی نیم، آئی ول ناٹ ییلڈ مائی گلوری ٹو اندر پریز آئیڈیلس. یہ دیکھ رہے ہو آئیڈیلس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں کتنے بت تھے مکہ میں. تو بولتا ہے یہ میں اپنی جو شان ہے نا یہ بتوں کو نہیں دوں گا. فار فارمر تھنگ ہیو ٹیکن پلیس نیو تھنگ ول ڈکلیئر. یہ پرانی جو باتیں نا ختم ہو جائے گی، میں نئی باتیں دوں گا. فار دا سے اسپرنگ ان ٹو یو اناؤنس ٹو یو. اوکے سنگ فار پریز ٹو دا لارڈ. یہ کیا کرے گا؟ نیا سانگ گائے گا، نئی شریعت لائے گا. سنگ ٹو دا لارڈ اے نیو سانگ، نیو شریعت کے ساتھ آئے گا، پرانی نہیں، تورات زبور انجیل کے ساتھ نہیں، نیو لا کے ساتھ آئے گا. He is from and he is fresh from the end of the earth. You go down to the sea and all is in it. In Iceland we live in them. Will the wilderness its town raise their voices? Let the settlements where Kedar lives rejoice. اچھا یہ کلبز میں آپ کو دکھاتا ہوں جسے کرسچن بھاگ جاتے ہیں، یہودی بھی بھاگتے ہیں. وہ ہے یہ شخص the settlements where Kedar lives. یہ قدار جو ہے یہ اسماعیل کا دوسرا بیٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادوں میں آتا ہے. عرب جو تھے، عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قدارین کہلاتے تھے، قدارین. تو یہ عرب میں یہ عرب سارے جو ان کی زیادہ تر نسل قدار سے ہیں. یہ جو شخص آئے گا یہ قدار کے ولیجز میں آئے گا، جہاں قدار آباد ہے. قدار کون ہے؟ عرب ہے. بائبل کے مطابق، ہسٹورین کے مطابق، اسلامک لٹریچر کے مطابق قدار کون ہے؟ سارے عرب ہے. لیٹ دا پیپل آف سیلا سنگ فار جوائے. سیلا کون ہے؟ مدینہ کا ایک پہاڑی ہے، مکہ کی ایک پہاڑی ہے مدینہ میں، اس کا نام سیلا ہے. سیلا ایک پہاڑی ہے، آپ کو میں دکھا بھی سکتا ہوں گوگل میں. لیٹ them shout from the mountains and give glory to the Lord. آپ کو پتہ ہے ہم لوگ پہاڑوں پہ جاتے ہیں مسلمان، وہاں پھر ہم وہ ثنا کرتے ہیں جب ہم حج اور عمرے پہ جاتے ہیں. پھر ہم کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی لبیک اللہم لبیک. ہم وہ صفا مروہ پہ بھی جاتے ہیں. The Lord will march out like a champion. آپ کو پتہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مکہ مدینہ سے 10,000 لوگوں کے ساتھ ایسے چیمپئن آئے، وہ لوگ سارے جو کفار گئے تھے ان کے گھر میں. لائک اے وارئر ہی ول اسٹیپ اپ اے زیل. لائک اے وارئر، دیکھو اس میں لفظ کیا ہے؟ اے وارئر، ایک جنگجو ہوں گے. He will step up a zeal without shout. He will raise the battle cry and trump over his enemies. کیا لکھا ہے؟ وہ آپ کو اپنے انمی کو ایک نیست و نابود کر دے گا. وہ لڑے گا. بائبل کہہ رہے وہ لڑے گا. یہ کرسچن ہمیں تانا مارتے آپ کے نبی تو جنگجو تھے، تو بائبل کہہ رہے یہ شخص ہوگا جنگجو ہوگا، لڑے گا. فار اے لانگ ٹائم آئی ہیو کیپڈ سائلنٹ. میں بہت ٹائم سے خاموش تھا. خدا کہہ رہے میں خاموش تھا. آئی ہیو بین کوائٹ یلڈ مائی سیلف بیک. بی لائک اے وومن ان چائلڈ برتھ. جیسا آپ کو دیں وہ انسان کو بہت جب بچہ آتا ہے نا پیٹ میں، مطلب بہت غصہ یا بہت درد کے ساتھ انسان، جب آپ انسان کو بہت درد ہوتا ہے نا بچے کی، جب اس کا پیٹ میں ہوتا ہے بہت درد ہوتا ہے. I will lay waste the mountain and hills and dry up all their vegetation. I will turn into the Iceland and dry up the pools. Okay. تو اس میں سے جو 3 چیزیں واضح ہوئی. اچھا یہ ہے اوکے، اس میں ایک چیز ہے. You are ears open but you do not listen. It is please the Lord for the sake his righteousness make the law great and glorious. But his people are plundered and looted of them that tremble, but hidden away from prison. They have become plunder. No one rescued them. Have been lot. Okay. Which of the you listen to this? Pay close attention in to come.
who handed Jacob or to become Lot and Israel to plunders? Was it not the Lord against whom have you sinned? آپ نے اس شخص کو ماننا ہی پڑے گا، اگر نہیں کیا تو وہی ہوگا جو اسرائیلیوں کے ساتھ ہوا. تو یہ کرسچنوں کو اور یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ربائی نہیں ہے یہودی، یہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے چھوٹے بچوں کو جانتے ہیں، لیکن یہ ان میں سے گروپ چھپا کے رکھا ہے کہ نہیں. تو یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگجو ہے، بائبل کہتے ہیں یہ نبی جنگجو ہوگا، موسیٰ کے جیسا ہوگا. ابھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، موسیٰ کے جیسا نبی کون ہے مجھے بائبل؟ اس کا وہ اوپر سے دے دیں، میں اس کا اسکرین شاٹ لیتی ہوں نا، میں 2-3 لیے نیچے سے، اوپر والا حصہ میں دیکھنا چاہتی ہوں نا، یہ کہاں سے آپ نے ریفرنس شروع سے پڑھ لو ایزائیا 42 بائبل. ہاں، یا انگلی ہٹائیں ذرا، میں اسکرین شاٹ لے لوں. بس ٹھیک ہے، تھینک یو. اصل میں جو نشانی نا اس میں ایک وہ یہ ہے ڈیوٹرونومی 18. اس سے میں نے کرسچنوں کو ادھر بہت ڈیبیٹ کے لیے بولا ہے، لیکن وہ ایسے بھاگتے ہیں، وہ نہیں آتے بائبل پر. وہ بائبل کی بات کرو اس کا سانس بھول جاتا ہے، وہ خالی بولتے ہیں عائشہ 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 عائشہ، بس ان کو وہی بس بولنا ہے. بھائی آپ آؤ تھوڑا سا انٹلیکچوئل بات کریں. یہ کیا ہے جو بیسک چیز ہے اس پہ بات، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی جو کل عام ہے. I will rise up a prophet from like you from among your dear brethren, and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them. That's I command. تو یہ اسٹوری اگر آپ پیچھے سے پڑھو گے 15, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20. تو موسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے جیسا ایک نبی تمہارے ہی بھائیوں میں سے اتاروں گا، اسرائیلیوں میں نہیں، تمہارے بھائیوں میں سے، اشماعیلیوں کی بات ہو رہی ہے، اور میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا. تو آپ نے کہا قرآن میں کہے تھے وما انتک علی الہویٰ فاحی یوحیٰ، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ہماری طرف سے وحی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی جی. ہاں. موسیٰ علیہ السلام جنگجو، پیغمبر علیہ السلام جنگجو. موسیٰ علیہ السلام نے شکست دی فرعون کو، قارون کو، امان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے جو ان کا ٹبر تھا شکست دی. موسیٰ علیہ السلام کی مختلف بیویاں، کافی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. موسیٰ علیہ السلام ایک اسٹیٹس مین، ایک لا میکر، ایک چیف جسٹس، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک شوہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وقت میں اپنے قانون کو نافذ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا. موسیٰ علیہ السلام نے نیچرل دنیا سے گئے، ڈیتھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے. تو یہ جو نشانی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی پہ فٹ نہیں ہوتی. اور قرآن میں بھی اس طرح اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بنی اسرائیل کو کہ ہم نے اس جیسا نبی آپ پہلے فرعون کو بھیجا تھا. ہائے جیکین آ گئی، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت کرے. یہ کون آ گئی خطرناک لڑکی؟ جیکی ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ تو سمجھ رہی ہو؟ تو یہ کلیئر آئے تھے. ابھی جب آؤ گی سلولی میں آپ کو بتاؤں گا نا، آپ کے ہوش چھوڑ جائیں گے. یہ تو میں ان لوگوں سے بات ہی کرتا ہوں، مسیح یہ چھوڑتے نہیں بات کو، یہ سیدھا گالی دیتے ہیں. ابھی اس دن دیکھو وہ توہین کر رہے تھے، دیکھو حدیث میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے. میں نے بولا دیکھو آپ ہم سے فنڈامنٹل پہ بات کریں، جو فنڈامنٹل چیزیں جیسے تثلیث ہو گئی، پروفیٹ ہو گیا، بائبل کلام ہے نہیں ہے، آپ ان چیزوں پہ بات کیوں کرتی ہے جو چھوٹے لیول کی چیزیں ہیں جس کا عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کسی بھی فاسٹر کے لائیے، میں بالکل ریڈی ہوں. میں کتاب بھی نہیں کھولوں گا، اس کے ساتھ 2-3 سوال کروں گا بس. فور ایگزامپل میں ایک سوال بناتا ہوں، یہ کرسچن کہتے ہیں خدا باپ ہے، صحیح ہے نا؟ یہ کرسچن کہتے ہیں میں سن رہی ہوں، میں آپ کو سن رہی ہوں، آپ پلیز جاری رکھیں. میں تھوڑا میوٹ ہو گئی نا کچن میں آئی، میں نے کہا کچھ اور کی آواز نہ آئے. جی میں سن رہی ہوں. جی بات کریں. کوئی بات نہیں. جی تیمور جی آپ آ گئے ہو خیر سے، بسم اللہ. جی آپ کہہ رہے تھے میں سوال رکھوں گا. نہیں کوئی سوال نہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا تھا، کوئی بات نہیں. دیکھو یہ بار بار کہتے ہیں خدا باپ ہے، خدا باپ ہے. یہ میں نے کہا دیکھو میرا ایک سوال ہے، سمپل سوال ہے، کیا خدا کے لیے باپ ہونا لازمی ہے؟ سمپل سوال ہے، کیا خدا کا باپ ہونا لازمی ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں کوئی لازمی نہیں ہے، وہ باپ ویسے ہی ہیں. ایک بات ہے نا، میٹافوریکلی دیکھیں تو ہر چیز کا رب کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، اس میں ساری صفات آ جاتی ہے نا.
देखो ये सवाल मैं क्यों करता हूँ, इसके पीछे एक राज। अगर ये कहेगा हाँ फंस जाएगा, अगर कहेगा नहीं फिर भी फंस जाएगा। हम्म, अभी फंसेगा कैसे? अगर ये कहेगा नहीं खुदा के लिए बाप होना लाजमी नहीं है, तो फिर ये खुदा को बाप क्यों कहता है? अगर वो ज़रूरी है एक चीज़ नहीं है, आप खुदा को वो लफ्ज़ अल्फाज क्यों इस्तेमाल करो जो ज़रूरी ही नहीं? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं खुदा खालिक है, तो ये लाजमी है कि वो खालिक हो। हम्म, अगर खुदा रब है ना, वो लाजमी है कि वो रब हो, क्योंकि वो पालेगा। अगर वो पालेगा नहीं तो वो खुदा कैसे हुआ? अगर वो खल्क नहीं कर सकता वो खुदा कैसे हुआ? देखो खुदा की सिफात है, अगर एक सिफत बाप में है, वही सिफत जो लफ्ज़ बाप है वो बेटे में क्यों नहीं है? तो फिर वो तो कमी हो गई ना, खुदा की सिफात में कमी हो गई। तो भी यसु मसीह तो तसलीस का हिस्सा है, रूल कुदस भी हिस्सा है, तो रूल कुदस और यसु मसीह में दो सिफतें कम हो गई। अभी रूल कुदस है वो यसु मसीह वो बाप नहीं है, और रूल कुदस बेटा नहीं है, लेकिन जो बेटा है वो बाप नहीं है, तो ये तसलीस टूट जाती है। अगर ये कहते हैं हाँ खुदा के लिए लाजमी है कि वो बाप हो, तो फिर बेटा भी बाप नहीं है। फिर ये मिसाल देते हैं, बोलते हैं खुदा एक है, जैसे कि आपका जिस्म है, आपकी रूह है, आपकी जान है, या आपके अल्फाज है। इन तीनों में से आप जो भी तीन ले लो, जिस्म, रूह, अल्फाज, ओके। लेकिन आप एक इंसान हो, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ। ये सवाल और ये मिसाल गलत है। हम्म, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आपके अंदर रूह ना हो तो आप जिंदा रह सकती हो, जिस्म जिंदा रह सकता है? नहीं। हाँ, लेकिन अगर जिस्म और रूह नहीं हो, अल्फाज रह सकते हैं? अल्फाज तो रह सकते हैं। नहीं, अगर आप जिस्म भी नहीं हो, रूह भी नहीं हो, तो आप अल्फाज कहाँ से बोलोगे? हाँ, अल्फाज तो है ही नहीं, अल्फाज की जरूरत ही नहीं है। ओके, अल्फाज हो ही नहीं सकते। ये क्या खुदा मोहताज है? नहीं। ओके, तो अगर आप बाप को जिस्म समझे, रूह को बेटा समझे और रूह खुदुस को अल्फाज समझे, तो ये तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। खुदा तो डिपेंडेंट नहीं होता। हाँ, डिपेंडेंट है। तो जिस्म तो डिपेंडेंट है रूह पर, रूह डिपेंडेंट है जिस्म पर। तो आपने एक मिसाल जो दी वो गलत मिसाल दी। तो मतलब तीनों ने मिल के परफॉर्म किया ना इंसान को, तीनों ने मिल के परफॉर्म किया खुदा को। हाँ, लेकिन देखो ये जो तीन तसलीस है ना, इसमें से जो देखो ये असल में तो तीनों खुदा है ना साथ में, लेकिन तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है। जो चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है वो खुदा कैसे हो सकता है? डिपेंडेंट है। हाँ ना। अब मैं सवाल करता हूँ, क्या बगैर दो के खुदा जो बाप है, क्या वो खुदा रह सकता है? यसु मसीह और रूल कुदस के अलावा क्या वो खुदा रह सकता है? ये कहता ही नहीं, तो मोहताज हो गया बाप, क्योंकि वो भी खुदा है, उसके अंदर तो सिफात है ना खुदा की, वो ज़ात तो है, वो क्यों नहीं रह सकता? इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के मोहताज है, तो भी ये खुदा नहीं है, तीनों के तीन खुदा नहीं है। आप समझ रही मेरे सवाल? समझ रही हूँ। तो ये मेरे से क्या बात करेंगे? ये तो गाली देंगे। अभी मैं सवाल करता हूँ, बाइबल में खुदा कहता है कॉल मी हस्बैंड, ये मैं हवाला लगाता हूँ, ये मुझे शोहर कहे, खुदा कहता है मुझे शोहर कहो, ये मैं लगाता हूँ। भाई ये कहाँ से लगाएंगे? जरा हवाला दे दिए, मेरे पास बाइबल पढ़ी है, मैं बाइबल की किताब खोल लेता हूँ। उस्मान भाई तस्वीर नहीं है। तैमूर आप क्रिश्चियन है? ये है उजाया और ये क्रिश्चियन है। चलो मैं इसको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, इसका मैं इलाज कर लेता हूँ। कॉल मी माई हस्बैंड, मुझे अपना शोहर कहे, एंड नो लॉन्गर कॉल मी बाल माई गॉड। ओके, तो ये उजाया 2:16 है। मेरे भाई मेरे महबूब, मुझे एक बात बताओ कि किताब का नाम बताओ उर्दू में। होजाया 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 उसका नाम है। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट? ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू दोनों में है। आपको होजाया का पता ही नहीं है, आप बोलते हैं ओल्ड और न्यू। मेरे भाई मेरा ना ईमान खुदावंद यीशु पे बहुत ज्यादा है, और इल्म जो है वो महदूद है मेरा। माशाल्लाह। वो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप रात को आपका ईमान ज्यादा हो जाता है या दिन को? सीखने ही आए हैं ना हम तो कुछ ना कुछ। अभी पता चल जाएगा इसका ईमान है कि नहीं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसका ईमान अभी मैं देखता हूँ। नहीं ऐसे ना बात करें ना, इससे
लेकिन बात सुनिए, अगर वो बिलीवर हैं तो आप उनको उनके वो पूरे प्रोटोकॉल से बात करें उनसे। डॉक्टर शाह आप अभी आपको समझ आ जाएगा, मैं डॉक्टर हूँ ना, अभी आपको समझ आएगा ये बिलीवर है कि नहीं है, आपको समझ भाई आ इसका जाएगा। अजाया कह को रहे हैं मेरा उर्दू में बताया बोलेंगे। इल्म कम है लेकिन बिलीवर है वो, ठीक है। नहीं ये भाई ड्रामा इसको कर क्या रहे हैं यार, बोलेंगे? अब हो नहीं, जाए। मैं ड्रामा नहीं पाया। आप मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप खुद हार जाएंगे। आप चलो सही, अपने बहुत नजरों में शुक्रिया। गिरेंगे अगर सारी बात करेंगे। उर्दू में चलो नाम पढ़ो बताइए ये भाई। हो जाए, इसका नाम उर्दू में भी हो जाए, ये कोई अरबी नाम तो मैंने नहीं रखा इसका, इसका नाम ही हो जाए उर्दू में। देखो, दिखा इसको उर्दू में ओल्ड चीजें दिखाओ। टेस्टामेंट में पैदाइश है, खरूज है, अखबार है, गिनती है, इस्तिआज है, यसूआ है, कसाब है, रहू है, समूएल 1, समूएल 2, सलातीन 1, सलातीन 2, तौरेत, पढ़ो पढ़ो अजरा, नमिया, पढ़ो, आगे आस्तर, पढ़ो। अयूब, जबूर, अमसाल, वाइज, गजल व गजलात, चलो अभी मैं नोहा, दोबारा दिखाता हूँ। हकील, दानियल। मुझे नहीं मिल रहा है भाई, आप मदद करना चाहेंगे? आपने ये नई बुक में दिया है ना, तो बता दीजिए ना। आप ये जो आप लगाया था पोस्टर, वो खोलिए दोबारा। मेरे प्यारे दोस्त, डॉक्टर शाह ये मौजूद हैं अपनी जगह पे? नहीं, वो पॉज हुआ है, मेरा ख्याल है वो कुछ लेने ले गए लो, हैं। ये आ गए। इस मस्किन के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ ना, ये बेचारे को बाइबल पढ़ना नहीं आता, ये है। अच्छा अच्छा। और खुदावन फरमाता है इस मौके पर तू मुझे शोहर कहकर पुकारोगी। नहीं, आप मुझे वो दीजिए ना, इसका चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 16 होसे, नहीं, इसका नाम है होसे। नंबर 2 ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट? टेस्टामेंट है, ओल्ड ओल्ड टेस्टामेंट चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 है ये खरूज मैंने है। लगा दिया भाई, ये लगा दिया भाई, तुम अंधे हो, ये सामने मैंने लगा दिया, तुम खरूज में मैं ढूंढ अंदर रहे से हो। नहीं, आपके पास आता है। ये दूसरा चैप्टर नहीं है, ये है उसके 848। चलो अभी पढ़ो, बिस्मिल्लाह करो। मैं बिस्मिल्लाह नहीं, किसी के नाम से शुरू करूँ? औज़ु बिल्लाह से शुरू करो। अभी इसके बाद मेरे सवालात शुरू होंगे इस वर्ष के ऊपर। आप बाप को तो रूहानी बाप बना देते हो, अभी शोहर का क्या करोगे? चैप्टर 2 वर्स कौन सी है भाई? 16 है। 16 जो आपने लिखी है यहाँ पे, ये है भाई, वादी में ताकीद की उम्मीदवार का दरवाजा हो और वहाँ गायकी करेगी जैसे जवानी का एयाम। ये देखो होशियारी कर रहे हैं, होशियारी नहीं करनी है। तुमको मैंने स्क्रीन पर उर्दू में लगाया है, तुम फिर भी होशियारी कर रहे हो मेरे साथ। अच्छा, आप उर्दू में लगा दी, मैं वो पढ़ लेता हूँ मेरे दोस्त। ये क्या लिखा है उर्दू में, क्या लिखा है? आप देखिए, कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। डॉक्टर शाह उर्दू बाइबल इजी टू रीड वर्जन, आप नहीं देख रहे उर्दू में लिखा है? हो भाईजान उर्दू में नहीं आ रहा लिखा हुआ, सिर्फ यू से लिखा हुआ आ रहा है। हाँ तो ये चैप्टर है ना, उसी चैप्टर है, उसी चैप्टर ये वर्स नंबर 16 देखिए भाई, ये है, 16 लगाइए। यही है भाई। अब मेरी तस्वीर भी देखिए, यही है। हाँ इसका 16 पढ़े। अब ये चैप्टर 2, हाँ 16 पढ़े इसकी। अब 16 है, ये 13, 14, 15 और ये 16। हाँ पढ़े। और खुदावन फरमाता है मुझे एशनिया कहेगी, और फिर ये भाई ये पढ़ते जाओ। अच्छा एशनिया कहेगी और एशी एक मिनट, एशी क्या चीज है? अच्छा पूरा कर लेना, 16 आयत पूरी कर लेना। नहीं, खुदावन फरमाता है मुझे एशी कहेगी। ये एशी क्या है? व्हाट इज एशी? एशी तो उर्दू का लफ्ज है ही नहीं, ये तो इब्रानी का लफ्ज है। क्या मतलब है इसका? शोहर। देखिए भाई, एशी में शोहर नहीं,
ओके, तो इसमें खुदा कहते हैं मुझे शौहर कहो, मुझे ऐशी कहो। अगर आपको चाहिए मैं अभी आपको बाइबल से दिखाता हूँ। ये ऐशी, देखिए मैंने आपको खोल के रखा हुआ है मेरे दोस्त, मेरे हाँ, प्यारे भाई। ऐशी किसे कहते हैं? ऐशी का उर्दू का लफ्ज़ है ही नहीं, ये तो उर्दू का लफ्ज़ है ही नहीं। तो ये उर्दू में ये लिखा हुआ है क्यों ना मेरे ट्रांसलेट नहीं दोस्त। किया? नहीं, ये ट्रांसलेट क्यों नहीं किया? ये तो ऐशी उर्दू का लफ्ज़ है ही नहीं। आपने दुनिया में कभी सुने ऐशी का लफ्ज़ उर्दू में? अभी मैं दिखाता हूँ ऐशी किस ज़बान का लफ्ज़ है। अभी मैं बाइबल से दिखाता हूँ। हाँ, डंडी मारते सोचे से, ये उर्दू वाले ज़्यादा डंडी मारते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन ले लें, इंग्लिश मेरे प्यारे ट्रांसलेशन ले दोस्त, लें। नहीं, हाँ इंग्लिश दिखाता हूँ ट्रांसलेशन आपको, ये तो अभी दिखाता हम हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलते हैं। इट्स नाइस आइडिया, इंग्लिश ले लो, बेस्ट आइडिया। हाँ इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए जी, ये भाई साहब जो कह रहे थे वो गलत हो गया ना। अब वहाँ पे हस्बैंड आना चाहिए अगर ऐसा होगा तो। हाँ हाँ, वही तो कह रही हूँ, हस्बैंड आना चाहिए ना इंग्लिश ट्रांसलेशन। बिल्कुल सही। ये पहले मुझे आजाया कहते हैं, आपको याद है? अजाया नहीं पता मुझे। होता है, मैंने बोला लल्लू ये देखो, ये इस दिन मुझे उस मेरे खावन कहोगी और फिर मुझे बाल मेरे आका नहीं कहोगे। अच्छा, मुझे ईशी कहोगे। देखो ईशी, वो लफ्ज़ आ गया उधर। मुझे ईशी मेरा खावन, बल्कि देख रहे हो आपका झूठ पकड़ा गया। हाँ, पकड़ा गया। ये ट्रांसलेशन इंग्लिश नहीं में है, भी आ रहा है नीचे। ट्रांसलेशन है। हाँ, ईशी माय हस्बैंड। मैं तुम्हारा आता हूँ, मैं फिर पता करके आता हूँ एक से बंदे से। मुझे नहीं पता है, मैं पूछ के आऊंगा इसका। एक अच्छा, मिनट रुकिए, मैं ये पता। डॉक्टर साहब, मैं क्यों उर्दू बाइबल नहीं पढ़ता हूँ? इसमें ये लोग तर्जुमा नहीं करते, ये गेम करते, ये इब्रानी के अल्फाज लिखते हैं, उसली वाली अल्फाज का तर्जुमा नहीं करते। क्यों? यार अब बात इनको सुनो, शर्म आती है खावन कहने से। बात सुनो मेरे ये प्यारे क्या, भाई। इसका क्या मतलब है यार? ये मुझे खुदा हुक्म देता है क्रिश्चियनों को, चूड़ों को, कि मुझे शोहर कहो। ये दुनिया में पहले सारे क्रिश्चियन खुदा को बाप कहते हैं, शोहर नहीं कहते हैं। उस्मान भाई, हालांकि उस्मान भाई, खुदा ने ये कभी नहीं कहा मुझे बाप बात कहो, सुनो। जिसने कहा मुझे शोहर कहो। अच्छा मेरा भी उस्मान भाई, सवाल है, अभी सुनो तो, पहले तो क्या ये खुदा तुम्हारा तौरात शोहर है कि नहीं? उस्मान ये उसकी भी नहीं बात पता। सुने जरा। अच्छा, ये तौरात है जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं तौरात को। किसने और कहा ज़बूर को तौरात? ये तौरात नहीं है भाई, जाहिल, ये तौरात नहीं है। जाहिल किधर तौरात है? देखिए, आप मुझे गलत अलकाबा से पढ़ रहे हैं, ये आपका मजहब आपको बताता है। अभी मेरा मैं मजहब आपको कहता तौरात है दिखाता हूँ। आपने नहीं बोलना है उस्मान, अपना किताब अल्फाज का चुनाव प्लीज, अल्फाज का चुनाव ठीक कीजिए। डॉक्टर साहब, जाहिल किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। जाहिल किसे कहते हैं? वो कह रहे हैं कि मेरा इल्म कम है, खुद कह रहे हैं नहीं, वो। ये अभी मैं बताता हूँ। आप पहला वो सफ़ा खोले, मैं आपको तौरात बताता हूँ। तौरात क्या है बाइबल में? भाई मैं पहले ये पता करके आता हूँ। देखिए मेरे दोस्त, मैं ये पहले पता करके आता हूँ कि ये क्या है, इसका मतलब। चलो पता कर रहे हैं। ये 1 मिनट का टाइम दीजिए ना, मैं 1 मिनट पता कर लेता हूँ ना। जी पता करने दें वो। 1 मिनट, पता नहीं करे। अभी ये भाग गया। ये क्यों पकड़ा गया? ये पकड़ा गया। कैसे? अभी इसने कहा ईशी का लफ्ज़ नहीं है। अभी मैंने देखो दिखाया। ये असल में क्या करते हैं डॉक्टर शाह साहब, ये लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं करते, उसमें शोहर का लफ्ज़ आता है। हालांकि मेरे पास 10 और हवाले जिसमें वाज़ेह लिखा है शोहर। अभी मेरा इससे सवाल था, इस वजह से भाग गया। अभी मैं इससे सवाल करूंगा, क्या खुदा नहीं, वो तुम्हारा कह शोहर है? नहीं, वो मेरी बात सुने। देखिए वो कह रहे थे ना कि मेरा इल्म कम है, मैं ना कम। इसको मैं जानता हूँ, इसके 5 अकाउंट है। एक का नाम पॉजिटिव है, एक का नाम यूज़र है, ये इसके 4वां अकाउंट है। हाँ, ये मेरे को उल्लू बना रहा है। इसको मैं जानता हूँ, मैं 6 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो मैं इनको जानता हूँ। ये कौन किस किस का अकाउंट से, यार इनकी आवाज़ मैं जानता हूँ। आप नहीं इन चीज़ों में, मैं पुराना हूँ। ये कल भी आया था, भाग गया था। तौरात, ये किताब तौरात नहीं है, ओज़ाया एक नबी है, उसकी अलग किताब है। ये तौरात 5 किताबों का मजमुआ है, बाइबल की जो पहली 5 है। ये तो पता नहीं कौन से नंबर पे आता है, 40-35 नंबर पे इसका नंबर आता है। इस जाहिल को ये भी पता नहीं है। देखो मैं जाहिल नहीं कि इसको एक होता है लाइलम, एक होता है जाहिल। जाहिल वो शख्स होता है जिसको पता है ये सच है, लेकिन वो जहालत पे खड़ा रहता है। हाँ जी ऐसे ही है। ये झूठ बोल रहा था, इस वजह से मैं इसको जाहिल इसलिए। चलो बात सुने, देखिए बात सुने, मेरी बात सुने। उस्मान नाम है ना आपका, उस्मान। बात सुनो, जो मनाजरा जब इंसान करता है ना, अच्छा करती हूँ, तो जब किसी से आप मनाजरा करते हैं ना, तो अदब और एहतराम के दायरे में रह के, अगर आप उसको जाहिल बोलोगे, अंधे हो गए हो तुम क्या, इस तरह के अल्फाज आप नहीं इस्तेमाल करें। ये जेब नहीं देते ना। मुझसे सवाल करे, मुझसे सवाल बोलना क्यों कर रही हो? मैं बाइबल से कॉपी कर रहा हूँ। वो कॉपी करो सुनिए यार वो सुन ली, मैंने सुन ली। देखिए वो हम पे इतराज़ करते हैं या अपने बारे में बताते हैं, आप
آپ نالج لیں، ان سے بات کریں، مناظرہ کیجیے، لیکن الفاظ کا چناؤ آپ کا نا، اگر آپ اس کو جاہل بولو، منہ پہ جاہل بول دو، اندھے بول دو، یہ نہیں ٹھیک ہے. آپ نا الفاظ کا چناؤ ٹھیک کیا کرو. باقی کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا جو علم ہے اس کے آگے تو میں سمجھتی ہوں کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے، نہ ہی میری اتنی اسٹڈیز ہیں. ہاں کوئی بات ابھی نہیں. یہ اسٹڈی دیکھو کرنا کیا ہے لکھا ہوا میرا. ہے، یہ یسوع مسیح کے الفاظ سنو. یسوع مسیح کے الفاظ سنو. ابھی میں نے تو اس کو جاہل بولا، یہ گالی سنو. یہ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا میں نے But Jesus replied, only a evil and adulterous generation. اس کا کیا مطلب ہے؟ evil and adulterous generation اس کا کیا مطلب ہے؟ بتاؤ. اے شیطان اور بدکار نسل کی اولاد، حرام زادو. تو یہ کہتے ہیں یسوع مسیح بہت پیسفل تھے، یہ تھے وہ تھے. لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں، عورتوں کو کتا، خنزیر، گدھا، کسی کو کتا، اپنے بڑوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اڈلٹرس جنریشن. یہ کوئی اور نہیں ہے. ان کے سامنے کچھ پارسی آئے، کچھ لوگ آئے، پارسی تھے، یہودی تھے، علماء تھے. ان کو کہتے ہیں او زانیوں کی اولاد، بولد الحرام. کیا معجزے مانگ رہے ہو؟ تم کو کوئی معجزہ نہیں دیا جائے گا، نشانی سوائے یونس علیہ السلام کا معجزہ. کیا پیغمبر ایسی گالیاں دیتا ہے؟ میں تو نہیں مانتا ہوں یہ یسوع مسیح نے ایسی گالی، لیکن یہ تو مانتے ہیں. ابھی یہ ایک گالی ہے، ابھی دوسری گالی سنو. ابھی تو میں نے گالیاں دکھائی نہیں. کھاؤ کوئی بات نہیں. کھاؤ کھل کے کھاؤ، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. میں وہ چائے لے کے آئی جو رس ڈپ کر کے کھا رہی ہوں. اچھا یہ ہمارے ایک پاسٹر جی آ گئے، عیسیٰ شیخ، یہ بھی پاسٹر ہیں. اچھا عیسیٰ شیخ جی، آپ کو یسوع مسیح کے خدا کا سلام. یہ پرومسڈ ہو کون ہے؟ اوشو کون آ گئے؟ ہلو. السلام علیکم. وعلیکم. Hello. Yes, promised. How are you doing? Promised. Hoshu. Good, how are you? Good. Urdu, English, Punjabi, or Hebrew, French, Italian. Which language you want to speak? Say again if you don't mind. آپ کون سی بھاشا میں بات کرنا پسند کرو گے؟ چو پارلے فرانسے، پارلے اٹالیانو، اور پارلے عربو، اور اردو، پنجابی، کس نال گل کرنی ہے بھائی؟ Punjabi is easy. اوکے پنجابی. آپ مسیح ہو اور کیا مسلم ہو یا سکھ ہو؟ میں انسان ہی ہوں، آپ اوکے مجھے جو گڈ. مرضی کہہ سکتے ہیں. میں آپ کا ویٹ کر رہا تھا سچ میں. یہ آپ کو انسان کس نے کہا؟ انسان میرے دماغ نے کہا کہ آپ انسان ہو. نہیں، یہ لفظ آپ کو، دیکھو آپ کا دماغ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا. یہ لفظ آپ کو کس نے دیا ہے؟ ٹائٹل. یہ تو عربی کا لفظ ہے، قرآن سے لایا گیا ہے. اوکے، آپ کو اس پہ کوئی کوشچن ہے، سوال ہے آپ کا؟ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ قرآن کے الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ آپ کی کوئی کتاب نہیں ہے؟ بھئی آپ کوئی اور جو لفظ مناسب ہے وہ استعمال کر لیں. لیکن میں آپ کو نہیں استعمال کر سکتا نا، وہ تو آپ جانور بن جاؤ گے سائنس کے مطابق. اور انسان جو ہے وہ حیوان ہے، اور کچھ لوگ بولتے ہیں وہ بندر کے بچے ہیں. ہم تو یہ بھی نہیں مانتے. وہ بھی اپنے کچھ آپ کو بندر کے انسان بچے کہتے ہیں. مانتے ہیں. ہاں نا، یہ جو سائنس، یہ جو ملحد ہے، ایتھیسٹ ہے، بولتے ہیں ہم لوگ چمپینزی کے بچے ہیں. جو ملحد ہیں وہ چھوڑیں اس بحث کو چھوڑیں. اب سلام دعا کر لیجیے. آپ جس بھی گریٹنگس کو پسند کرتے ہیں، مطلب گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ آپ پسند کرتے ہیں، السلام علیکم پسند کرتے ہیں، نمستے پسند کرتے ہیں، میں ہاؤ چیریو آر جو یو بھی. پسند کرتا ہوں. تھینک یو جی. ہاؤ آر یو بھائی ماشاء. ٹھیک ہے. چلیں اپنی گفتگو جاری رکھیے. آپ آپ وہ کریں. بالکل. آپ کا فیتھ کیا ہے بھائی؟ پرومسڈ ون، آپ کا فیتھ کیا ہے؟ بھائی فیت تو میرا کوئی نہیں ہے، میں تو بس دماغ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جو میرے دماغ کو اچھی لگے گی وہ آپ سے شیئر کروں گا. زبردست. آپ مانتے ہو کہ پرمیشور ہے؟ کیا؟ پرمیشور خدا ہے، رب ہے؟
آپ بتائیں مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں، پھر میں جو آپ بتائیں گے پھر میں اوکے دیکھو پھر ہی جواب دے یہ سکتا ہوں. اوکے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، رب ہے رب دنیا کا کوئی بنانے والا، یا سب کچھ خود ہی آ گئے ویسے ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ بھائی بات یہ ہے کہ مختلف جو لوگ ہیں وہ رب کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں. آپ کی جو رائے ہے آپ بتائیں کہ آپ کا ایک رب ہے اس طرح کا ہے، تو میں اگر مجھے اچھا لگا تو مان لوں گا. ہم یہ کہتے ہیں جو رب ہے وہ بے مثال ہے، وہ نہ انسان ہے، نہ مجسمے میں ہے، نہ وہ مورتی ہے، نہ آپ اس کو ایسے دیکھ سکتے ہو کہ ایک ڈبے میں بند ہو آپ اس کو دیکھ لو، جیسے کہ ایک دنیا ایک ڈبہ ہے. تو وہ لازمان و لامکان ہے، وہ کسی سپیس اور ٹائم میں نہیں ہے. اور یہ جو کائنات ابھی چل رہی ہے اسی کا ایک خالق ہے، اس کو ہم رب کہتے ہیں. اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی والد ہے، نہ اسے کوئی جنا ہے. ہم کہتے ہیں اس کو چلانے والا، آج جو اس کی قدرت ہے نا وہ اس کے ذریعے ساری کائنات چل رہی ہے. آپ اس بات کے ساتھ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایگری ہو؟ آپ کا دماغ کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ آپ بولتے دماغ. یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہی ہے. اگر میں اس پہ سوال کی اجازت تو میں سوال کر سکتا ہوں. کر لو بھائی، میرا تو کام یہی ہے. آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ نہیں، ہم نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ہم نے دیکھا ہے. آپ کے ابا جی نے دیکھا ہو؟ ہم انسانوں میں سے ہم نے نہیں کہا کہ ہم نے دیکھا ہے، دعویٰ کسی نے نہیں نہیں کیا. دیکھا، تو آپ کیسے بابا کہتے ہیں کہ بابا ہے؟ اچھا بابا گرو نانک مطلب جو لیٹسٹ ریلیجن ہے نا، انہوں نے بہت لمبی پوئم لکھی ہے خدا کے بارے میں نا. انہوں نے کہا ہے گاڈ از ان نون اینڈ ان نونیبل. ٹھیک ہے، ایسے کر کے نا بہت ساری اس کی صفات اس نے بتائی ہیں اسی طرح کی نا. اگر آپ کہیں گے تو میں نے ایک میرے ہندو دوست ہیں ڈاکٹر آریان ان کا نام ہے، انہوں نے مجھے ڈیٹیل سے وہ پڑھائی تھی. وہ ایتھیسٹ ہی ہیں ویسے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر خدا کی تعریف سپونزا ایک فلاسفر ہے، وہ خدا کے ہونے پہ انہوں نے کافی دلائل دیے ہیں. سپونزا کو اگر آپ پڑھیں نا تو مطلب ان کی جو سپونزا یہ ابھی کی ہمیں پڑھ کتاب، لے گا نا ڈاکٹر شاہ، یہ ابھی ہمیں پڑھ لے گا نا، یہ ٹھیک ہو ای جائے گا میل بالکل. دیتی ہوں میں نا، اس کی سپونزا کی بک ہے. مطلب وہ ایگنیسٹک جس کو کہتے ہیں نا، جو خدا پہ تو یقین اگنوسٹک، کرتے ہیں پر ہاں ایگنوسٹک، یا کسی کنفیوز ریلیجن ہے. پہ نہیں، کسی ریلیجن پہ نہیں، لیکن وہ کرتے ہیں ایسے. جی آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے. میوٹ ہو جائے ایچ بی، میوٹ ہو جائے چلیں ایچ بی بھائی کو میوٹ کر اللہ دیں. تم کو جاری تو ہم رکھیں گے اگر آپ نے رکھنے دیں جی تو. حکم، جی جی حکم کریں پرومس جی سر، کوئی دیکھو مسئلہ آپ کا نہیں. جو سوال ہے نا، دیکھو ایک چیز سمجھا کرو. ہم رہ رہے ہیں ایک ٹائم اور سپیس میں، آپ ایک ڈبے میں، یہ دنیا ایک ڈبہ ہے. ابھی دیکھو اس طرح ہزار اور بھی کائنات ہے، ایسا ہی ہے نا. تو دیکھو ایک چیز جب ہم ایک چیز کے اندر ہے، ٹائم اور وقت کے اندر ہے، جو ہم زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ ایک اندر ایک ڈبہ ہے، قسم کا ایک ڈبہ ہے، بند ہے. آپ کہو گے یار میں اس کے اندر ہوں تو خدا بھی اس کے اندر ہونا چاہیے. کیا یہ غلط بات نہیں ہے؟ نہیں، میں نے تو ایسا آپ کچھ ایک نہیں کہا. آپ نے جو خدا کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ، ابھی ایک اور دوست نے بھی کہا ہے کہ وہ جی ایک نظم ہے جس میں وہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان نون ہے. جب وہ ان نون ہے تو آپ کو کیسے پتا ہے ایک چیز ان نون ہی نون نہیں ہے؟ انونیبل دونوں باتیں کی انہوں نے نا، نہیں جو ٹھیک گرو ہے. نانک. وہ یہ جیسے یہ پہلے صاحب کہہ رہے اچھا تھے، آپ دیکھو نے بھی پرومس ملتی جلتی پرومس لائن بولی ہے کہ ایک پرومس چیز جی جی حکم کریں. دیکھو ایک چیز کا ضروری نہیں کہ اس کا وجود ہو تو کسی چیز کا اثر ہوتا ہے. اثر سمجھتے ہو؟ اثر، انفلوئنس اثر ہوتا ہے. لازمی نہیں ہے. ہاں ضروری نہیں ایک چیز کو ہم ذاتی طور پر دیکھیں، اس کا اثر بھائی ہم چیک کرتے ہیں. اثر یہ تو ایک چیز کا جو یہ تو اگلی بات ہے نا. ہاں پہلی بات تو ہاں پہلے ہاں کلیئر کر لیں، جو ہے یا ان پہلی نون. آپ نے کیسے نون کیا؟ آپ نے دیکھا، آپ کے کسی بات ہے جاننے والے نے دیکھا، نون کیسے جی جی ہوا؟ بابا جی. جب ان نون ہے تو نون میں کیسے آیا؟ دیکھو یہ اول شی چې راځو ته تخپل معرفت وکم سره بیا غنه پس خاموش ماته پرېږده زه کوم. ګوره دیکھو گرو نانک صاحب نے ایک خوب بات کی ہے. دیکھو گرو نانک صاحب کی ایک میں چیز بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اس نے ایک بہت اچھی بات کی ہے. دیکھو اس نے کہا یہ جو کہتا ہے کہ مجھے آپ نے خدا کو دیکھا ہے، آپ مجھے دکھاؤ،
बोलते हैं बेवकूफ़ाना सवाल है। वाई? बेवकूफ़ाना सवाल इस तरह है कि देखो ऐसा है जैसे कंप्यूटर एक शख्स बनाता है, उसके अंदर एक माइक्रोस्कोप एक छोटा सा लगा होता है या कोई तार होता है। अभी तार कहता है, ये जो तार है ये कहता है यार मुझे बनाने वाला कोई है, मैं देखना चाहता हूँ। भाई आप तो अंदर हो, बाहर निकलोगे तो आपको दिखाई देगा, आप तो कंप्यूटर के अंदर हो। अब ये जो माइक्रोस्कोप है ये कहते हैं मैं खुद बन गया। अभी कहेंगे कैसे बन गया भाई, आप कैसे बन गए, कंप्यूटर कैसे बन गया? देखो एक चीज़ कंप्यूटर के अंदर है, एक बाहर है। आप एक कंप्यूटर के अंदर हो, पूरी जो कायनात है। आप कहते हो नहीं ये खुद ब खुद बन गया, या तो किसी ने बनाया है या खुद ब खुद बन गया है। अगर किसी ने बनाया है तो मेरा क्लेम सही है भाई मैंने मान लिया, मैंने सर मान लिया कि किसी ठीक है, मैंने ठीक है, भाई ठीक है। इतनी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह पे पहुंच गए हैं। मैंने मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कि किसी ने ज़बरदस्त। बनाया ये डब्बा है। आप डब्बे के बाहर जाके आपने पता किया खुदा है कि कोई और था आपके जानने वाला? ओके ज़बरदस्त। आपने एक चीज़ तो मान ली ना, पहला स्टेप क्रॉस हो गया, फ्यूम, आपने बिलीव कर लिया कि क्रिएटर है। चलो इस चीज़ पर तो आप एग्री हो ना? चले मैं 5 दफा बिलीव कर लेता हूँ, आप आगे चलें बस। अल्हम्दुलिल्लाह, हालेलुया। ओके, हाँ, जल्दी जल्दी दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेप, दूसरा स्टेप, ये जो क्रिएटर है इसने जो क्रिएट किया है, क्या वो कंट्रोल कर रहा है या उसने वैसे ही छोड़ दिया सब कुछ? बस भाई ये तो अपने आप आपने चल रहा बताना है, आपने बताना है कि आप नहीं। डब्बे से बाहर गए, आपने देखा वहां पे कोई बैठ के कंट्रोल कर रहा है, ये तो आपने समझाना है मुझे। नहीं, देखो आप एक कंपनी बनाते हो तो आप कंपनी को वैसे ही छोड़ देते हो या उसको कंट्रोल भी करते हो? भाई कंपनी को बनाया तो फिर आपने वो कंट्रोलर देखा है? मैं तो ये कह रहा हूँ, पहले आप कह रहे थे नोन अननोन है, आप मैंने अभी नहीं आप कहा, मैंने कुछ नोन नहीं पे कहा, आ गए। मैंने कुछ हाँ। नहीं कहा, मैंने कुछ, वो डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा आप क्या कहते हैं? आपने भी ये कहा था कि वो वहां आप देख नहीं सकते मैं उसको। मैं 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 कह सकता हूँ आप देख सकते हो, लेकिन आपको वो माइक्रोस्कोप होना चाहिए ना, आपके पास कोई तराजू तो होना चाहिए। आपको तराजू लाइए, मैं आपको खुदा दिखा दूंगा। आपके पास है आपके कोई? पास है? आपके पास है मेरे पास देखने वाला वो नहीं है ना, वो माइक्रोस्कोप? चीज़ नहीं, वो नहीं है ना, वो नहीं है। हम उसके अल्फाज हमारे साथ हैं। हैं? आपने हाँ, अल्फाज से अल्फाज। अंदाजा कर लिए? एक बात नहीं, मैं एक बात बताती हूँ, अब सुनिए। वो बताएगा, कि मुझे वो बताएगा, उसको पता है। हाँ जी, वो सर बताएगा। अगर इजाजत हो तो 2 लफ्ज कहने की तो। नहीं इजाजत है, इजाजत है, बताएं। अच्छा किसी को देखिए, इजाज़त है, लड़कों के नहीं जी। नहीं वो तो अगर आप भी बताएंगे ना, मैं तो इतना इल्म नहीं रखती हूँ, ठीक है, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ ना, तो मैं तो कुछ सीखना चाहती हूँ। मैं जो समझी थी ना थोड़ा सा, वो ये था कि जैसे खुदा ये कहता है कि मुझे मेरी निशानियों से पहचानो, आसमान, हाँ, सूरज, चांद, सितारे, अभी ठीक सही है, बात आपने और की। कि मेरे से मुझे पहचानो। अच्छा मैं ये कहती हूँ क्रिएटर ने जो क्रिएट किया है उससे मैंने उसको पहचानना है। फर्ज महल में एक गाड़ी, मैं मतलब प्रॉमिस जो है वो एक गाड़ी बनाते हैं, ठीक है, एक गाड़ी में उस फीचर्स रख देते हैं, उसकी स्पीड है, उसकी लाइफ है, वो क्या खाएगी, पेट्रोल लेगी, उसकी इतनी स्पीड है, वो इतना चलेगी, ये सारा कुछ जो है वो प्रॉमिस बना देते हैं। तो मैं जो प्रॉमिस की जो क्रिएशन है ना, उसको देख के कहूँगी यार क्या बात है, क्या गाड़ी बनाई है, क्या स्पीड है, फरारी से भी अच्छी बना दी, ये क्या कर दिया इन्होंने। तो मैं उसकी तारीफ करूँगी उसकी क्रिएशन को देख के, ठीक है। अब जो क्रिएशन है ना, जो क्रिएटेड चीज़ है क्रिएटर की, वो सवाल क्रिएटर से ये कर सकती है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरी इतनी स्पीड क्यों रखी, मैं पेट्रोल खा रही हूँ, मैं खाना क्यों नहीं खाती, मैं मतलब वो गाड़ी जो है, वो क्रिएशन जो है, क्या वो क्रिएटर से सवाल कर सकती है? नहीं, सवाल है उसको नहीं, क्योंकि उसने उसको क्रिएट किया है, उसका हक ही नहीं बनता। वो उसका जो मैं पूछूं मर्जी कि कर ले। हाँ, क्रिएटर ने जो किया वो, अच्छा एक बात और है, क्रिएटर क्या अपनी क्रिएशन में 100% अपना दे देगा? नहीं देगा। भाई सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता क्रिएटर का, आपको पता है अभी कि नहीं पता, फलां ने बनाई है, आपको कैसे अभी पता नहीं चला है? पता। बस मैं तो एक यही मिनट, पूछना एक चाहता मिनट, हूँ। जानू आप तजाद में पढ़ रहे हो। देखो इसको बोलते हैं इनकन्सिस्टेंसी, आपके अल्फाज में तसलसल नहीं है। पहले कहा मान लेते हैं 5 दफ़ा, अब कहते हैं मुझे पता नहीं है। तो आप पहले ठीक बोल रहे थे या अभी ठीक बोल रहे हो? अब पहले ये तजाद ख़त्म करें। मैं पहले भी ठीक बोल रहा था, मैं अभी भी ठीक बोल रहा हूँ। अभी एक आपके कोई साथ जो बोल रही है बीबी है, कोई बंदा है, वो कह रहा है कि जी वो ये गाड़ी बीबी वाला बंदा नहीं है, देखो सवाल ने। जानू ये बीबी बंदा नहीं है। देखो आपके अल्फाज में भी तजाद है, ये बंदी है और बीबी भी है साथ में। अच्छा ठीक है, बंदी हो गई तो बंदी कह रही है
आपका आपसे एक किस चीज तरह पूछना गाड़ी है। बनी, और आप दोनों की राय है कि जो गाड़ी क्रिएटर है उसके बारे में आप सवाल नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, आपका मैं नहीं कर एक सकता, चीज आपने पूछनी कैसे हो, पता कर लिया? अभी मैं पता करता हूँ। आप मानते हो अकल है, कॉन्शियस? हाँ, अकल है, इसीलिए तो मैं आपके सवालों को समझ रहा हूँ चलो, कि आप ठीक नहीं मुझे है। दिखा सकते, ये आप मुझे दिखा सकते हो कहाँ है? ये घुटनों में है, सर में है, दिमाग में, किधर है? आप मुझे दिखा दो, बात खत्म हो जाएगी, मैं आपको खुदा दिखा दूंगा। इंसान की जो थिंकिंग है, जो दिमाग की जो स्ट्रक्चर है, जो उसमें ख्यालात आते हैं, उसी की नहीं, बेस पे अकल वो की बात करो, हवा से अकल से अकल की खमसा, फैसला बात करो। करता है। देखो यार, अब देखो हवा से खमसा जो है, देखिए मैं को एक मैंने चाय पी है, खाना खाया है, बहुत मज़े का है, तो मुझे किसने बताया? मेरी टेस्ट बर्ड्स ने बताया ना, ठीक है? तो कुछ चीज़ें ये हवा, कुछ मेरा चीज़ें सवाल देखो, ये है कि हम अकल को अक्ले कैसे खमसा पहचानेंगे? ये है कि नहीं है? ये तो आप हिस्स की बात कर रही हो, मैं तो अकल की बात कर रहा हूँ। वो भी तो देखिए, देखो ब्रेन है ना, भाई ब्रेन। अकल की बात इसीलिए तो नहीं मैं नहीं, पूछ ब्रेन रहा अलग हूँ है कि भाई, एक ऐसी ब्रेन अलग चीज चीज है। जिसने मैं गाड़ी कॉन्शियस की बनाई बात कर रहा हूँ। है, मुझे नहीं पता चला, मेरा सवाल करने का हक नहीं है। आपको पता नहीं, है कि फलां ने बनाई है, तो आप थोड़ा सा बताएं, आपको कैसे पता चला? मुझे नहीं चला तो। देखो, वो तो अब एक ये बता रहे ना, क्रिएटर ने एक चीज क्रिएट की है। हाँ मेरा हाँ सवाल है ये हाँ, क्या बेसिकली, बात है। क्रिएटर ने एक चीज क्रिएट की है, तो क्या वो क्रिएशन क्रिएटर से पूछ सकती है? सवाल है, नहीं अभी पूछ तो सकती, जवाब नहीं आया नहीं है। भाई पूछ सकती, कैसे पता चला नहीं पूछ क्रिएटर सकती। ने की है? मुझे तो आप पूछने नहीं देते, आपने पता अच्छा, किया मैं तो बता रहा आपको हूँ, कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि आपके अंदर अकल है? नहीं, वो और सवाल है ना। नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज़ थोड़ा वेट करें। आपको किसने कहा कि आपके अंदर अकल है? आप साबित कर सकते हो? हाँ साबित जी, करो, मैं तो बात खत्म। मैं आपको खुदा दिखा सकता हूँ, वल्लाह मैं दिखाऊंगा। आप एक दफ़ा मुझे अकल साबित करो कि अकल है। आप कैसे दिखाओगे? आपने खुदा पहले आपने कहा मैं आप देख नहीं वल्लाह सकते, अभी आप दिखाऊंगा, दिखा देंगे? दिखाऊंगा। अब मेरे अकल तो दिखाओ, किधर है? ये पाँव में है, घुटनों में है, खा सकता हूँ, नहीं टमाटर है, नहीं बैंगन है, क्या है? भाई बाबा, अभी थोड़ी देर पहले आप दोनों कह रहे थे बाबा कि नहीं वो हूँ, उस्मान अननोन जान है। हूँ। अननोन मैंने चलो, नहीं कहा, आसमान मैंने बयान ही नहीं कहा सही, भाई। ठीक आप है, मान गया मैं। मैंने आसमान जैन जी, बात यह है कि अभी आप दोनों कह रहे थे कि वो अननोन है, अभी एक आप कह मिनट, रहे हैं आपका मुझे अकल, अकल दिखा आपका दो, तो अकल, मैं खुदा दिखा एक देता हूँ ये। मिनट, हाँ देखो, जी, देखो, ये जो खुदा है ना, उसके दिखाओ। लिए देखने के लिए अकल, अकल चाहिए। अगर आपके पास अकल ही नहीं है तो मैं दिखाऊंगा कैसे? चले, आपको मेरे आपको तो पास पता ही नहीं नहीं है, चलेगा मैं क्या देख रहा हूँ। आपके पास अकल है, तो आपने खुदा देखा है? एक मिनट, माशाल्लाह। तो देखो, इतनी छोटी सी चीज़ जो अकल है, आप उसको नहीं दिखा सकते, और आप मुझसे तकाजा कर रहे हो खालिक कायनात को दिखाऊं? आपका दिमाग ठीक है? भाई नहीं, मेरा तो ठीक नहीं है, लेकिन आपका तो ठीक है, तो आपने खुदा देखा है? माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो देखो, आप छोटी सी चीज़ नहीं देख सकते, अकल, और मुझे कह रहे हो मुझे मैं खालिक अकल दिखा नहीं दो। दिखा सकता, इसलिए आप खुदा नहीं दिखा ये सकते, ये कहना चाहते ये हैं? बेगान ये तो ऐसे है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, नहीं नहीं, मैं अकल नहीं दिखा सकता, तो आप खुदा नहीं दिखा सकते इसलिए कि मैं अकल नहीं दिखा सकता? देखो, खुदा के देखने के लिए अकल चाहिए। आपको एक सिस्टर ने एक बहुत खूबसूरत भाई बात की। आपके पास अकल है ना, तो आपने खुदा नहीं देखा है? नहीं, देखो, अब मैं सिस्टर ने मेरे खूबसूरत पास तो बात की, आपने पैसे भी उसको है, क्या आप उस पैसे को खर्च कर सकते हो? मेरे पास तो पैसे ज्यादा हैं आपसे, आप उस पैसे को खर्च कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपके पास अकल नहीं है तो आप देख भी नहीं सकते हो। अभी ये साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है, देखो, गुरु नानक साहब ने फरमाया कि ये जो प्रोमिस्ड है, प्रोमिस्ड, इसके बातों में तजाद है। ये अपने लिए कुछ उसूल रखता है, दूसरों के लिए कुछ उसूल। मतलब हमें कहता है खुदा दिखाओ, हमें कोई तराजू भी साथ में नहीं दे रहा, माइक्रोस्कोप भी नहीं दे रहा। जब इनसे पूछा जाता है अकल दिखाओ, बोलते हैं मेरे पास तो नहीं है। जब अकल ही नहीं है तो सवाल आप कहाँ से कर रहे हो? भाई आपने तो कहा खुदा मेरे तो पास आप अकल है। दिखाने बैठे थे, पहले दोनों का क्लेम था कि वो नहीं, अननोन है। देखो, अभी ना बात, देखो मेरी बात सुनो, तो मस्कुर हाँ नहीं जी, उड़ाना है किसी का भी। आप लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, थोड़ा सा उसमें अदब के लिहाज को रखिएगा प्लीज। अच्छा, देखो, मैं हम एक सारे किस्सा स्टूडेंट सुनाता हैं, हूँ। हम स्टूडेंट बिल्कुल, हैं। वो बिल्कुल, अकल आप बिल्कुल। उसको कह रहे हैं कि अकल दिखाओ भाई, अभी देखने की चीज़ नहीं है ये महसूस करने की चीज़ है। जैसे मैंने कहा टेस्ट बर्ड्स है, टेस्ट बर्ड्स में महसूस हुई ना एक चीज़, तो आपको हाँ, तो खुदा भी दिख रहा है। तो हवा से खमसा के किसी भी चीज़ में खुदा बता दीजिए। हवा से खमसा जो है, हमारे देखने की हिस्सा है, सूंघने की हिस्सा है, सुनने की हिस्सा है। ये चारों पांचों है ना, कोई छठी हिस्स तो नहीं भाई होगी मैं जिसे बिजी इंसान समझे। हूँ, मैं बिजी हूँ। आप में से किसी ने खुदा देखा है तो मैं दोबारा पूछता हूँ आके।
वो गुरु नानक साहब तो नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं नहीं है, मैं तो आपको नहीं, अभी वो से कह प्रॉमिस हमारी हवा से खमसा में से बता चला दीजिए, गया यही एक नहीं, दरख्वास्त ये कर रहे थे। वैसे ये बेचारा जो था सिख था और ये शर्मा रहा था, अपनी सिख होने पर शर्मा रहा था, जैसे क्रिश्चियन शर्माते हैं यार। अपना नहीं नाम नहीं किसी ने कोई हकपी रखा हुआ है, किसी ने मौलाना सफियान रखा हुआ है, किसी ने फातिमा। तो ये क्रिश्चियन पाकिस्तान में शर्माते हैं, मुसलमानों के नाम रखते हैं। हक पीर आ मेरा गए, नाम वेलकम हो गया जी आपको। ये तो ये पता है आपको उसने क्या कहा? इसने कहा मरियम जो है बाइबल में ये यीशु मसीह की बीवी है। ये इतना बड़ा गुस्ताख है। किसने कहा? अच्छा एक मिनट, इसने ये हक जलील नहीं है। जी वालेकुम हाँ, सलाम। हक ना करो। हाँ ये कहते, आप मानते हो कि यीशु मसीह जो है वो मरियम अलैहिस्सलाम के शौहर है? नहीं नहीं, वो तो नहीं। तो बाइबल में तो लिखा हुआ, इसका तो अकीदा है। which indicate there are some verses in Bible which indicate Mary was a wife or Mary has some kind of वो अब तक हम बाइबल के एक्सपर्ट तो नहीं है ना, हमें नहीं पता। मैं तो हूँ ना, मेरे पास सर्टिफिकेट है ना। इस ये बेचारों के पास तो है ही नहीं, जितने पाकिस्तानी क्रिश्चियन है। पीर साहब आए थे, उनको बुला लिया ना। यार वो तो पागल आदमी है, वो तो सारा दिन तौबा तौबा, वो तो पागल है। आप पागलों के साथ भी बैठते हो यार। आप पागल ना कहना, किसी को ऐसे नहीं कह सकते आप। यार। जो शख्स यीशु मसीह की तौहीन करता है, बोलता है मरियम अलैहिस्सलाम उसकी बीवी है, तो उसको मैं पागल नहीं तो मैं क्या कैसे वो उससे को साबित करे ना, वो अपनी किताब से साबित बाइबल में लिखा करते हुआ हैं। है, बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह के सामने तमाम। अच्छा वो आयत मैं भी दिखाता हूँ, सब्र करें, अभी दिखाता हूँ, आपको यकीन हो जाए, अभी यकीन हो जाए, सब्र करो। आप यकीन नहीं करें, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? यार रहमान भाई, ये हकीकत वही नहीं है नीचे जो बैठे कल हमारी डिबेट अरेंज कर रहे थे? जी जी, ये वही है, वही शख्स है। हाँ, ये वही है और वापिस ही नहीं आए। हाँ, अच्छा ये टाइम बनाया और ये थोड़ा सब्र करे भाई, थोड़ा सब्र करे भाई, सब्र करे। मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, गुजारा करें। थोड़ा गपशप बात में लगे ना, थोड़ा सब्र करे। अभी ये जो मैं अकबीर को यीशु मसीह की बीवी साबित करूँगा और यीशु मसीह की। अच्छा ये क्या लिखा है? ये है 2 Corinthians 11 की 2। आई एम जेलस फॉर यू विद अ गॉडली जेलसी। ये बाइबल में खुदा फरमा रहा है। पॉल जो इनका मिर्ज़ा कादियानी फर्स्ट है, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए खुदा ही जेलसी रखता हूँ। खुदा की भी जेलसी होती है माशाल्लाह। I promise to you one husband। क्या लिखा हुआ है? I promise to you one husband to Christ, so that might be present as a pure virgin to him। तो ये जो हकपीर है, इसकी बीवी है, इसकी माँ है, इसके जितने भी इसके हमसाया है, जितने भी क्रिश्चियन है दुनिया में, इनका एक हस्बैंड है। वो कौन है? क्राइस्ट। और ये हकपीर हो गई, ये सब एक वर्जन की शक्ल में, प्योर वर्जन की शक्ल में पेश किए जाएंगे। जैसे मरियम अलैहिस्सलाम बाइबल में रूह कुदस जो होता है, बाइबल के मुताबिक वो खुदा है, उसने साया किया। तो यीशु मसीह रूह कुदस के भी बेटे हुए और बाप के भी बेटे हुए, क्योंकि साया तो यीशु मसीह पर, मरियम पर, मेरी पर उसने किया। तो ये जो हकपीर है ये एक वर्जन बनेंगे। क्यों? अपने शोहर के सामने पेश होंगे। शोहर कौन है? क्राइस्ट। और मरियम मेरी जो है वो भी वर्जन बनेगी और यीशु मसीह के सामने पेश की जाएगी। अभी आप मुझे बोलो, इसको मैं पागल ना बोलूं, दीवाना ना बोलूं, इसको मैं इज्जत दूं? आप इसको इज्जत की बात समझ रही है? कोई इज्जत की बात है? डॉक्टर शाह साहब थोड़ा तो इंसाफ करें ना। ये नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है ये चीज़ ना। अच्छा आपको इंग्लिश समझ आ रही है? क्या है हकीकत को पिक करें जरा। क्या? आई एम जेलस फॉर यू विद अ गॉडली जेलसी। इंग्लिश जी तो जी, समझ आ रही मैंने है? पढ़ लिया। जी जी, समझ आ रही है। ओके, तो हस्बैंड कौन हुआ? क्राइस्ट हुआ। इन तमाम क्रिश्चियनों का जो हस्बैंड है वो क्राइस्ट है। और इनको वर्जन, प्योर वर्जन, ये प्योर वर्जन को उर्दू में क्या कहते हैं यार? मुझे वो लफ्ज़ नहीं आता। कवारी, प्योर कवारी वर्जन, कवारा को कहते हैं। कवारी फुल या कवारी ना, फुल कवारी ना, साफ सुथरी कवारी। तो ये साफ सुथरी कवारी का यीशु मसीह क्या करेगा? ये
دیکھو میرا خیال ہے کہ جو میری تو بہت کم علم ہے وہ یعنی کہ سب لوگ جو ہیں وہ ورجن ہو جائیں گے، ورجن ہو جیسے جائیں گے، ہمارا یسوع بھی مسیح اس کا شوہر ہوگا، جنت یسوع مسیح شوہر ہوگا نا، شوہر کون ہوگا نا، شوہر مطلب اس میں پرابلم ہو ہاں، رہی ہے شوہر کی، یسوع مسیح اس کا شوہر ہوگا، جو کرائسٹ ہے وہ حقیقت کو شوہر پک کر ہوگا، لیں نا، حقیقت کو پک کریں، پیر صاحب کو بھی پک کر لیں، تو اس وہ کو جواب پھر یہ پڑھو، بسم اللہ کرو، استاد بیٹا ہوا ہے گستاخ، وہ بولتے ہیں شاگرد سے بات کرو، سے ہیں حال بدحال ہے، مجھے یہ پڑھنا ہے بھائی، مجھے سمجھ حال نہیں آ رہا، وہ تو سمجھ آ گئی، بدحال یہ تمہارا حال جس طریقے سے یہ تھوڑا تم پڑھے، یہ تھوڑا پڑھے، مزہ زیادتی آ رہا ہے کر مجھے، رہے یسوع ہو. مسیح پڑھنا نہیں ہے، میں بات کلام، کروں کہ تم نے مجھے کرنے نہیں دینی بات. میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ ہاں، آج ابھی کہتے تو میں ابھی کھول لیتا ہوں اپنی براؤنڈ. آ جائیں سارے کے سارے ادھر آ جائیں تاکہ ہم بات تو کریں. یار میں بس گٹر میں کیوں اس سے جاؤں، علاوہ ادھر بدبو، آپ کو بات آتی نہیں، آپ کے پاس آ جائیں کہ بات کرنے کے لیے یہ جگہ کم ہے. 4 سیٹیں اور حق پیر کی سوری، ان کی نہیں چھاتیوں پر پڑھو. ہاتھ پھیرے گئے، نہیں میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو بائبل کا کلام پڑھ رہے ہیں نا، خدا کا کلام ہے یار، آپ بولنا، آپ نہیں چاہتی میں ثواب کماؤں، اور ان کی دوشیزگی کے پستان مسلے گئے، بڑی کا نام ہاولا، استغفر اللہ، استغفر اللہ
तौबा 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 यार अस्तगफिरुल्लाह आप उनको बुलाएं और उनसे कहें करे आप गुलाम मेरी कमाल प्लॉट पे आ चुप हो जाओ जाओ भाई, ये कुरान नहीं पढ़ रहा मैं, ठीक है, आ जाओ आ जाओ मेरी प्लॉट। यार चुप हो जाओ यार चलो आप अपने प्लॉट में वेट करो हम लोग आ रहे हैं इसने असुर की सिपाहियों को देखा वो सब नीले पोशाक में थे सभी को चाहा पता नहीं कैसे चाहा बस चाहा चाहा है तुमको चाहेंगे हरदम मिलके भी तुमको ये गाना भी इधर से आया हुआ है और इनकी गंदी मूर्तियों के साथ नापाक हो गई डॉक्टर साहब आजकल देख रहे ये जो खिलौने इस्तेमाल करते हैं यूरोप में आपको पता है ये चीज़ें ये इधर से इन लोगों ने ये आइडिया लिए गंदी मूर्तियों के साथ नापाक हुई इसके अलावा इसने इसने मिस्र में अपनी इश्कबाजी को बंद नहीं किया भाई ऐसी बातों का क्या जरूरत है खुदा को लिखने की क्या जरूरत है मैंने इसके इसने इसे दे दिया पता नहीं क्या दिया लोगों ने कपड़े उतार कर नंगा उर्दू में पढ़े ज्यादा मजा आएगा अच्छा जी थोड़ा नीचे पढ़ते हैं आपको मजा आएगा देखो इसमें क्या है वो कसीदी लोगों की तस्वीरें इनकी लाल पोशाक में थी ये कसीदी क्या होती है कश्ती डॉक्टर शाह में तो समझे नहीं कश्ती मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता कश्ती रंडी को बोलते हैं उर्दू में अच्छा हाँ इंग्लिश में साथ ट्रांसलेशन आ रही है हाँ ये देखो हाँ सारी है तो मोहब्बत के बिस्तर पर चढ़े और इन्हें इसने जिनसी फेल किया इसे आलूदा किया अस्तगफिरुल्लाह अब अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तौबा 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 अभी ये बातें अकबर अपनी बहन के सामने बेटी के सामने पढ़ सकता है दोनों में मिस्र में किया था अभी जवानी उसको याद आ रही है मुन्नी बदनाम हुई और डार्लिंग तेरे लिए सो वो फिर अपनी इन यारों पर जान चढ़कने लगी सो वो फिर अपने इन यारों पर जान चढ़कने लगी जिन
का जिस्म गद जाल। आप जानती हो व्हाट इज अंजाल? जी जी। घोड़ों का ये तो अच्छा में मसले गई। अच्छा ये अभी नहीं ताने वो मिल रहे इसलिए बोले बा मेरे मालिक खुदावंद। अच्छा ये खुदावंद यसु मसीह ये सब लेंगे। तो यसु मसीह अभी इनके वो औरत के साथ ये काम करेगा। मैं इन सभी लोगों को बाबिल से खास कसदी लोगों को लाऊंगा। मैं फकूद शू और मुख्तलिफ कौमों में रहने वाले लोगों से तुझ पर हमला करेंगे। देखो अभी हमला भी हो रहा है। डॉक्टर साहब साहिबा एक औरत और इतने ज्यादा लोग। ये आपको कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं? मेरे सर से गुजर रही इतनी प्यारी ऐसी बात नहीं है। आइए अब अभी ये जो ठीक ठाक, आप सुनाए? ये मेरी जबरदस्त। वालेकुम सलाम। जी बिग ब्रदर आपका कोई सवाल है? अभी चुम्मों की बात शुरू हो गई। अच्छा ये जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जो आप इससे पहले आप पैसेज पढ़ रहे थे, अगर ये प्रेयर में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? डॉक्टर शाह साहिबा मैंने बोला तबीयत समझा में देखा औरत था खड़ी खानदान। डॉक्टर शाह साहिब बेन सामने खड़ी और मैं सवाब कमा रहा हूँ। वो अपने मुंह के चुम्मों से मुझे चुम्मे क्योंकि तेरा इश्क में से बेहतर है, शराब से बेहतर है, शराब से बेहतर है। खुशबू लतीफ है, तेरा नाम अतर खतीत है। मुझे मत देखो भाई, पहले बता रही हो बाद में बोलती मुझे मत देखो। मैं सियाफा हूँ क्योंकि
میں دھوپ کی ماری ہوں. ایک منٹ وہ زیادہ. ابھی تو روٹی کی بات شروع ہو گئی کیونکہ بیچارہ بھوک لگ گئی بیچاروں کو. ایک منٹ کدھر گیا یہ غریب اچھا یہ ہے. یہ اردو والا. اچھا اردو بائبل لاؤ بھائی. یہ تو مجھے کیا انگلش میں زیادہ مزہ نہیں ہے. نہیں ملا سالہ کبھی نہ کوئی چولے بیچ رہے. ایک نیچے سے نہیں سن سکتے ہو. میوٹ ہو جاؤ دونوں. ایک منٹ ابھی چوکیدار پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. ایک منٹ یار تمہاری وجہ سے میرا اسکرین خراب ہو گیا. ایک منٹ. ابھی ہم لوگوں نے ڈاکٹر شاہ صاحب کو ہم بائبل پڑھ ڈاکٹر شاہ کو ہم پختون بھائی تھوڑا میوٹ ہو جائے یار. میں آج بہت فارم میں ہوں. اور تب تک جانے نہیں دیا جب تک میں نے اپنی ماں کے گھر نہ لے گئی. what the heck is this؟ ایک منٹ دوبارہ پڑھتا ہوں. مزہ. پیرا داروں سے میں نے ابھی تھوڑی دور گئی کہ مجھ کو میرا محبوب مل گیا. میں نے اسے پکڑ لیا. اچھا محبوب کو لڑکی نے پکڑا. تو یہ جو لڑکیاں ہیں آج کل کیوں خراب ہے؟ یہ بائبل پڑھ کر خراب ہے. ابھی لڑکوں کو پہلے لڑکیاں پٹھاتی تھی, ابھی لڑکیاں لڑکے پٹھا رہی ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے. اکبیر تمہیں تو کوئی پٹھائے گا بھی نہیں. اور تب تک جانے نہیں دیا. اچھا جی لڑکے کو پکڑا بھی, اس کو جانے بھی نہیں دیا. اس کے اوپر اس نے کیا کام کیا؟ جب تک میں اپنی ماں کے گھر نہ لے جاؤں. یہ اکبیر کی بات ہو رہی ہے, اس کے گھر میں نہ لے جاؤں اور اپنی والدہ کے خلوت خانے میں نہ لے جاؤں. استغفر اللہ. اپنے امی کی بیڈ میں لے گئی. استغفر اللہ. میں یار یہ بولنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں جاتا. عورتوں سے کہتی ہے اے یروشلم کی عورتوں. اچھا یہ جو اس نے گندا کام کیا نا, گندی بات, ابھی یہ یروشلم کی بیٹیوں سے بھی ہے.
تم غزالوں اور میدانوں کی حیرانیوں کی قسم کھا کر مجھ سے وعدہ کرو، محبت کو مت جگاؤ۔ محبت کون سی والی محبت ہے ابھی مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ابھی تو کمرے میں لے گئی اس کو، تو یہ کون سی جگانے کی بات ہو رہی ہے؟ محبت کو مت اکساؤ، یہ کون سی اکسانے کی بات ہو رہی ہے؟ بگ برادر اس پر بعد میں اچھار ڈالے گا، روشنی تو اس نے نہیں ڈالنی۔ جب تک میں تیار نہ ہو جاؤں، تیاری کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی تو یہ کمرے میں لے گئی، تو یہ کون سے احساسوں کی بات ہو رہی ہے؟ اور اس کی دلہن، یہ عورت کون ہے جو بیاباں سے آ رہی ہے؟ لوگوں کو اس پر بڑے گروہ کے ساتھ ان کے پیچھے دول ایسی اٹھ رہی ہے جیسے کوئی دوئے کا بادل ہو، وہ جو مر اور لوہان کی خوشبو سے اور طرح طرح کی عطروں سے ان لوگوں نے بخشا نہیں ہے۔ اتنا پیغمبر ہے، ان لوگوں نے اس کو چھوڑا نہیں، تو اس وجہ سے تو یہ ہمارے نبی کی عزت نہیں کرتے، ان لوگوں نے باقی پیغمبروں کو جو چھوڑا نہیں ہے۔ اس کی پالکی کو اسرائیل کے بہادر، استغفر اللہ، بھی اسرائیلی بیچارے بھی آ گئے ہیں جو خبیث ہے آج کل، بہادر سپاہیوں میں سے 60 سپاہی، ایک بھی نہیں 60 سپاہی گھیرے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، پہلے ایک محبوب تھا، ابھی 60 آ گئے، وہ سب کے سب شمشیر زن اور جنگ میں۔ ایک کون سی جنگ کی بات ہو رہی بھائی؟ تو بتو بھائی بگ برادر، یہ جنگ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ کون سے شمشیر ہے، تلوار؟ توبہ یار، یہ اوکے کوئی بات نہیں، میں اپنی فیلنگ کنٹرول کرتا ہوں، ہاللیلویا۔ اچھا پیر نہیں پڑھنا چاہے بولتے ہیں، اچھا دیکھو ابھی لبنان بھی ساتھ میں آ گیا، مصر ختم ہو گیا، ابھی لبنان میں بھی یہ ٹکا ٹک شروع ہو گیا۔ سلیمان بادشاہ نے لبنان کی لکڑیوں سے اپنے لیے ایک پالکی بنوا دی۔ اس نے پالکی کے ڈونڈوں کو چاندی سے بنوایا اور اس میں سے نشت سونے کے، اچھا یہ تھوڑا سامان خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا نیچے جاتے ہیں نا، مزے لے رہے۔ اچھا، جو اس کو اس کی ماں نے اس دن پہنایا تھا جس دن وہ بیاباں آیا تھا، اس دن وہ بہت مسرور تھا۔ اوہ ابھی تو مزہ آ رہا ہے۔ ایک منٹ بھائی، ابھی برادر آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بگ برادر آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم آپ کی رائے، مسٹر ڈاکٹر آپ کا ڈاکٹر سے نہیں ہے، ڈاکٹر شاہ سے پوچھتے۔ ڈاکٹر آپ نے یہ سے خوبصورت الفاظ کبھی زندگی میں پڑھے تھے؟ نہیں میں نے کبھی نہیں پڑھے، میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسا۔ پڑھ لیا۔ چلے بائبل ہب اس پہ روشنی ڈالے گا، تھوڑا وہ تھوڑا ایکسپلین کرے گا یہ کس بارے میں ڈسکس ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں یار کس بارے میں، ہاں، یہ دماغ خراب کر دیا۔ عیسیٰ شاہ جی۔ ابھی یہ پڑھو نا، تھوڑا صبر کرے نا، ابھی یہ بھی ہے نا 4۔ میرا محبوب تو کتنی خوبصورت، کتنی حسین ہے، نقاب کے پیچھے تیری آنکھوں کی جھلک کبوتروں کی مانند ہے، تیرے بال ان بکریوں کی مانند ہے۔ اچھا بکری بھی آ گئی، اچھا پہلے کیا تھا؟ گدھا، گھوڑا، کتا، ابھی آ گیا کیا؟ بکری آ گئی ساتھ میں، ماشاءاللہ بکری رہ گئی تھی وہ بھی آ گئی۔ نقاب کے پیچھے تیرے گالوں کی جھلک انار کے ٹکڑوں کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ حق پیر سالے، یہ تیری بہن کی بات ہو رہی ہے، تم نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کیسے لکھتی؟ پیغمبر اللہ کے بارے میں۔ حق کدھر گئے وہ مزیدار؟ اچھا یہ دیکھو، تیری چاہتیاں سسنوں میں چڑھنے والی غزال جڑوا بچوں کی مر کے پہاڑ بخود پہاڑ کے پاس چلی جاؤں،
मेरा महबूब तेरा हुस्न कामिल है के मान शेर भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह शेरों के मान चीतों के पहाड़ों से उतरे। अच्छा शेर भी आ गया चीता भी आ गया ये दो जानवर और आ गए। दिल को इस साले इंडिया वालों ने इधर से चोरी किए भाई बल्कि गाने चुरा लिया है तूने दिल को नजर नहीं चुराना सनम। देखो आंखों को एक ही नजर से चुरा लिया है तूने जो तेरे प्यार में से पसंदीदा है पलसान की कोई भी खुशबू तेरी महक का मुकाबला नहीं कर सकती बिल्कुल नहीं कर सकती। हराम खोरो मेरी दुल्हन जिस तरह शहद छत्ते से टपकता है। ये कौन सी शहद की बात हो रही है डॉक्टर शाह? ये फीमेल की प्राइवेट पार्ट्स की बात हो रही है। ओली शहद की जुबान से नहीं तेरे कपड़ों को खुशबू सूंघ कर लबनान की खुशबू याद देती है। मेरी बहन मेरी दुल्हन तू एक बाग है। ये कौन सा वाला बाग है? अस्तगफिरुल्लाह बहन को बाग भी कह रहे कभी कबूतरी कह रहे। जिसकी चादरें किसी और लगी है। एक मिनट डॉक्टर साहब एक बंद किया गया चश्मा जिस पर मोहर लगी है। उई 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 तोबा 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 क्या पढ़ रहा ये हम बाइबल पढ़ रहे क्या पढ़ रहे इतना तो मैं जवानी में खराब चीजें नहीं देखी है जितना मैंने पढ़ लिए। तोबा तोबा एक मिनट साथ बैठती है सवाल नहीं करती जब सवाल करोगी ना आपको ये नीचे बैठ देंगे। हम आपको पढ़ा रहे ये जो अकबीर है ना ये आपको इस नजर से देखता है। इसको मैंने बहुत सी लड़कियों के आंटियों के साथ ये शुमाली अच्छा ये तोबा तोबा अलग का कसम बस भाई मेरा तो तबीयत भी खराब हो गई तो भाई मैं क्या चले यार गई ऐसी है चीजें ना चलो पढ़े यार मैं ऐसी चीजें ना पढ़े यार पख्तून भाई ऐसी चीजें ना करें इधर प्लीज। इजाज करवाया करे पहले हाथ पीर से ना कहते बाकी बात बाद में गुफ्तगू तो होती रहती है। ठीक है आप बहुत अच्छे शख्स हो डिबेट भी करते हो पहले इhtजाज किया करो कि बाइबल मुकद्दस को ना फहश वेबसाइट से हटाया जाए। ये लड़की ने ये क्या शादी हो रही है? नहीं वो डॉक्टर शाह की गीला हो गया। अच्छा हो सकता है ना अभी बाइबल मुकद्दस पढ़ी है तो हाथ तो गिले। अच्छा ऐसा शाह साहब क्या हाल है आप? नीचे मेरे ख्याल आए आए हैं वो तो ये मैं
तो वेट कर रहा था काफी टाइम से कि कोई बंदा आएगा इधर आके डिबेट करेगा, चलो हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। देखो अगर मैं तो डिबेट नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ सवाल करता हूँ। बस मेरे सामने ये जिकिल पढ़ ले, उसको तशरीह करे, बस ये मेरा डिबेट है। और कोई डिबेट नहीं है। नहीं, कल हमें एक बंदा आके चैलेंज देके गया कि मैं बंदा लेके आऊंगा डिबेट के लिए, तो आप भी एक हो जाए, हमारा भी एक हो जाए। तो हमने बोला चलो ठीक है, आप ले आओ। तो हम तो फिर काफी टाइम से वेट करते रहे, फिर रात तकरीबन 2 बजे तक तो मैं खुद वेट करता रहा। फिर सोंगे हम, ये आया नहीं।